وقت ہے میرے عزیزو کہ ہم قرآن کے خوبصورت کلام کو سنیں. کیا آپ سب ریڈی ہیں؟ ہاللیلویا. آئے ہم سبھی اپنی بھرپور تعلیم قرآن کے خادم کو سامنے بلائیں. ہاللیلویا. پریز کرو قرآن کی تعریف. بہت شکریہ پیارے بھائی، خدا آپ کو برکت دے اس ساری خدمت کے لیے جو آپ نے یہاں پر خداوند کے نام کو بڑا اور اونچا کرنے کے لیے کی ہے. اور ہم چونکہ سب ایماندار ہیں اور اس بات پر ہمارا کامل ایمان ہے کہ جب عبادت کا پہلا حصہ جو ہے، فرسٹ سیشن جو ہے، وہ ہم گزارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیاری کے ایک بہترین مرحلے میں سے گزرتے ہیں اور ہمارے بدن، ہمارے روح اور سوچیں جو ہیں وہ خداوند کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. سب سے پہلے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے دن کے لیے کہ خداوند نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، سلامتی دی اور دن کو بڑا خوبصورت اور چمکدار رکھا، اور ہم سب کو خداوند نے اس قابل کیا کہ ہم اس کے مذبح اور اس کے کلام کے گرد جمع ہو پاتے. اور یاد رکھیے گا، خدا نے ہمیشہ ہی سے ایک بات کو اپنے لوگوں کے لیے سوچا ہے کہ کوئی ایک ایسا مقام ہو جہاں پر خدا انہیں مل سکے. ہاللیلویا. اور اگر آج کے دن میں ہم دیکھیں تو خداوند اپنے لوگوں میں موجود ہوتا ہے، اور جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دراصل ہم خداوند سے ملتے ہیں. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آج جو زندگی کا کلام ہے اس کو لینے کے لیے اس کے پاس آ پاتے. میرے عزیزو، آج کی صبح میں آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فتح مند نام میں سلام قبول ہو اور خداوند آپ کو برکت بخشے. سب بولے آمین. سب بولے خداوند کا نام مبارک ہو. ہاللیلویا. آئے میرے عزیزو، ہم دیر کے بغیر خداوند کے کلام اقدس میں سے چند حوالہ جات کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم بائبل سے آغاز کرتے ہیں تو ہم ضرور منزل تک پہنچتے ہیں. جب ہم بائبل سے آغاز کریں گے، بائبل سے شہادتیں لیں گے، بائبل سے گواہیاں لیں گے، بائبل سے گواہ لیں گے، تو پھر وہ بات ہماری ہمیں ابدی زندگی تک لے کر ضرور جائے گی، اور وہ باتیں جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ضرور بتائے گی. ہاللیلویا. اور یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ بہت سی چیزوں سے آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کے کلام سے آغاز کریں گے اور کلام پر ہی ختم کریں گے. نکالیے گا میرے ساتھ، پیدائش کی کتاب میں جائیں گے، دا بک آف جینیسس، اس کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 9 ہم پڑھیں گے. کوئی بھی بھائی سے بلند آواز میں پڑھے. اور دوسرا ایک حوالہ جو ہے وہ دوسری کوئی بہن نکال کے رکھے گی. رومیو 10واں باب نکال کے رکھیں. تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا، اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی، میں نے باغ میں تیری آواز کو سنا جی، اور میں ڈرا تیری آواز سے، کیونکہ میں ننگا تھا، وجہ یہ ہے کہ میں ننگا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا؟ ہاں جی، جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اس میں سے نہ کھانا. آدم نے کہا ہاں جی کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، ہاں جی، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا. جس کلیسیا کو تو نے میرے ساتھ عورت کو کیا ہے، اس نے کہا کھا لے، اور اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھا لیا. تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. آمین آمین. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہمارے لیے برکت. ایک اور حوالہ رومیو کا خط نکالیے گا، مقدس پالوس رسول کا رومیو کی کلیسا کے نام لکھا گیا خط 10واں باب اور 20 اور 21 آیت. کوئی بھی بھائی سے بلند آواز میں پڑھے گا. ایمال کے بعد بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے، پھر یہ سایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا. کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے آگے بڑھیے گا. جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ریویل ہو گیا، ظاہر ہو گیا. پوری آیت پڑھ لی جی. خدا برکت دے. 20 اور 21 تھی، دونوں پڑھنی تھی جی. لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے، لیکن اپنے لوگ اس کے اپنے جو بڑے خاص تھے اسرائیل کے حق میں یسایہ کیا کہتا ہے جی؟
کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا. ہاں جی، میں ہاتھ بڑھائے رہا، ہاتھ پھیلائے رہا اپنے لوگوں کی طرف. جی آمین آمین. خدا برکت دے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس چیپٹر 7 ورس 7 7 نکالیے ذرا پڑھیے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جی دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آمین. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. اور عزیزو اس کلام کے باعث جو آج یہاں پر سنایا گیا ہے، خداوند اپنے وعدے کو پورا کرے. اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے تو لوگوں کو شفا ہوتی ہے. اور آپ ایمان رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ اپنی جو شفا ہے اس کو ایمان سے ریسیو کرتے ہیں. اب مسائل کا حل ایمان سے ریسیو کرتے ہیں. ایمان رکھیں اور ایسا سوچیں کہ خداوند نے کہا تھا تو ضرور ہوگا. آمین. خدا کو آزاد کرے، اس کلام کی پوری برکت آپ کو دے. تشریف رکھیے. خداوند آپ کے ساتھ. may God bless you. خداوند ساتھ ہو آپ کے. ہاللویا. سب بولیں خداوند کا نام مبارک ہو. تعریف ہو خداوند کے نام کی. اور سب خوشی سے کلام کو سنیے گا. چند باتیں آج کریں گے. اور جیسا کہ آپ سب اس بارے سے واقف ہیں کہ جب یہ حوالہ جات پڑھائے جاتے ہیں تو میں آپ کے دھیان کو اس طرف لگانے کے لیے، تھوڑا سا دھیان کروانے کے لیے کچھ پوچھتا ہوں کہ ان 3 حوالوں میں کچھ لفظ جو تھے وہ کامن مطلب کے تھے یا کامن ہی ایک جیسے تھے. جی کامن الفاظ تھے، ایک جیسے الفاظ تھے. وہ کون سے الفاظ تھے؟ ڈھونڈنا. کیا؟ ڈھونڈنا. ہم نے 3 حوالے اٹھائے. حوالے میرے پاس اور بھی ہیں، کسی کو چاہیے تو مل جائیں گے. پاسبل ہے میں بات کرتے کرتے بیچ میں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر دوں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے بڑا سمپل اور بڑا سادہ سا لیکن بڑا ہی خاص ہے. آمین. روٹی چاہے سوکھی ہو یا پراٹھا ہو، ہے نا، کچھ بھی ہو، روٹی ہونی چاہیے. روٹی کے بغیر آپ کا کچھ نہیں بن سکتا. یعنی روٹی کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے. ہم بدنی طاقت اور قوت کو رکھنے کے لیے، زندہ اور ایکٹیو رکھنے کے لیے روٹی کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو. اور آپ سب کا بڑا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب بھوک لگی ہو تو پھر سوکھے ٹکڑے بھی کھاتا جاتا ہے بندہ. زیادہ روٹی جب بنے گی اتنی دیر تک کھا لو، کیونکہ پیٹ میں کچھ لگی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ کیوں جی؟ آمین. تو آج کا ہمارا موضوع ہے بڑا سمپل سا لیکن بہت خاص ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں. کیا ہم نے مسیح کو پا لیا؟ کیا ہم نے مسیح کو سوالیہ ٹاپک ہے آج. آمین. کیا ہم نے مسیح کو پا لیا؟ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ پرانے عہد کا یہوہ نئے عہد نامے کا، بولیے گا، یسوع ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے جب نئی کلاس شروع ہوتی ہے تو کتنے مہینوں بعد پیپر ہوتے ہیں؟ جلدی سے بولیے گا. 3 بار بیچ میں 2 بار ہوتے ہیں اور تیسری بار فائنل. اور اس کو کل ملا لیں تو 8 سے 9 مہینے تو پکے لگتے ہیں. لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ اس دورانیے کے اندر استاد نے اتنا کچھ پڑھا دیا ہوتا ہے کہ بیچ بیچ میں آدھی بات وہ کرتا ہے اور دوسری بات لوگوں کو، یعنی کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کرنی پڑتی ہے. تو میں اس لیے آدھے پہ رک جاتا ہوں. کیوں رکتا ہوں؟ تاکہ آدھی آپ کریں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کنہ کو پیچھے تک ذہن دے وچ. آمین. کتنا دماغ میں پہلے سے فیڈ اپ ہوا ہے. آمین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائک وہ ہوتے ہیں جو فیڈ اپ رکھتے ہیں، دماغ میں فیڈ رکھتے ہیں، چیزوں کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. آمین. تو میں نے کہا پرانے عہد نامے کا یہوہ نئے عہد نامے کا کیا ہو گیا؟ یسوع ہو گیا. اگر آپ نے پرانے عہد نامے کے یہوہ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سننا ہے تو کس کو دیکھنا پڑے گا؟ یسوع کو. پھر آگے بڑھ جاتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ پاک کلام رکتا نہیں، وہ بڑھتا ہے. پاک کلام سن نہیں ہو جاتا، وہ سنسنی پیدا کرتا ہے. آمین. میری باتوں کو سمجھے. پاک کلام پیسو وائس نہیں ہے، وہ ایکٹیو وائس ہے. وہ ٹھنڈا نہیں ہے، وہ گرم ہے. اور پاک کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام بھسم کرنے والی آگ کی مانند ہے. ہاللویا. اس لیے آپ کو پتا ہے جو لوگ جن کا باڈی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے وہ نان ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ پیسو ہو جاتے ہیں، اور ان کو مفلوج زدہ یا فالج زدہ بھی کہتے ہیں. اور بدن کا اگر کوئی حصہ ہو جائے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے بلکہ بڑی پرابلم میں آ جاتے ہیں. اور اگر ہم میں سے کوئی مفلوج ہو گیا، اسپرچول پیرالائز ہو گیا ہے نا، تو پھر خدا کو بڑی پرابلم ہو جائے گی اور ہمیں بھی بڑی پرابلم ہو جائے گی. لیکن خدا لگا ہوا ہے کہ اس کا پیرالائز جو حالت ہے اس کو نکال کر میں ایکٹیو حالت میں لے کر آؤں. آمین. پرانے عہد کا یہوہ نئے عہد نامے کا یسوع ہے.
ہم نے سب سے پہلا کہاں سے حوالہ پڑھا؟ پیدائش کی کتاب میں سے. میں پوچھوں گا نہیں, میں پوچھتے پوچھتے بتاتا بھی جاؤں گا. تو ہوا کیا, پرانے عہد نامے کے اندر ہم نے ایک حوالہ لیا کتاب پیدائش کے اندر, اور میرا یہ ماننا ہے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک سب خدا کے روح نے لکھوایا ہے. سب کا مصنف خدا کا روح ہے, کسی انسان کی اپنی اختراع اور اپنی سوچ سے نہیں ہے. سب بولیں آمین. آمین بولیں گے تو برکت ملے گی, یہ پکی بات ہے. آمین, ہاللویا. جب خدا نے سب سے پہلی کریشن نسل انسانی کے جد امجد, جس کو ہم والدین کہتے ہیں, دنیا کی پوری قومیں اس کو ہی اپنا باپ مانتی ہے, وہیں سے انسان کا آغاز ہوا ہے. آمین. جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی کہیں سے بھی ہیں. آمین, کہیں سے بھی ہیں. تو جو پہلے دو انسان تھے ان کو ایک آرڈر جاری ہوا. کیا ہوا؟ سب کچھ ان کے پاس تھا, ساری سپر نیچرل پاورز ان کے پاس تھی. بھائی بہنوں, اپنے میسج میں کہتے ہیں کہ آدم کے پاس سب کچھ تھا, اور اگر آدم کے پاس سب کچھ تھا تو آدم کا سب کچھ کس کا تھا؟ ہوا کا. آمین. کیونکہ ہوا کس کی تھی؟ آدم کی. جب تک وہ آدم کی تھی تب تک سب کچھ آدم کا اس میں تھا, لیکن وہ کسی اور کی ہو گئی. وہ کسی اور کی ہو گئی, اور جب وہ کسی اور کی ہوگی تو آدم کی نہ رہی. اور جب آدم نے اس کی بات کو مان کر جانتے بوجھتے ہوئے اس عمل میں شامل ہوا جو خدا نے منع کیا تھا, تو پھر آدم کے اندر جو کچھ باپ کا تھا وہ باپ کا وہ سب کچھ اس کے پاس نہ رہا, بلکہ باپ کے پاس واپس چلا گیا. یہ ہوتا ہے آغاز, جہاں سے گراوٹ شروع ہوتی ہے, انسان کی تنزلی شروع ہوتی ہے, انسان کا فال سسٹم شروع ہوتا ہے, جس کو کہتا ہے گراوٹ شروع ہو گئی. آمین. اور ایسی ہوئی کہ وہ پھر بلڈ لائن کے اندر آ گئی, اور جب بلڈ لائن کے اندر آئی تو آدم کے بیٹے, آدم اور ہوا کے بیٹے اور بیٹیاں سب گرتے رہے اور اٹھتے رہے, گرتے رہے اٹھتے رہے, گرتے رہے اٹھتے رہے, لیکن خدا نے انہیں چھوڑا نہیں. ساتھ ساتھ خدا چلتا رہا. خدا چلتا رہا, چھوڑا نہیں گناہ کے بعد. اب وہاں پر ہوا کیا کہ جب پہلی گراوٹ ہوئی, پہلی گراوٹ کا مطلب پہلا گناہ ہوا. پہلا گناہ مطلب زمین پر. آمین. جب گناہ کا مطلب کیا ہے, آج مجھے پوچھنا نہ پڑے کیا مطلب ہے گناہ کا. نبی بیان کرتا ہے وہ گناہ کا مطلب ہے بے اعتقادی, خدا کے کلام پر اعتقاد نہ کرنا, اور اعتقاد نہ کرو گے تو پھر ہی اگلا کام کرو گے, ہے نا. کیا خیال ہے بیٹا, یہ کام نہ کرنا, اور پاپا کڑے بندے پہنے, تو سب سے پہلے حکم کس کا رد کیا؟ پاپا کا. وہیں پر گناہ شروع ہو گیا تھا, کیا تو بعد میں ہوگا. سمجھ رہے گل دی؟ تو گناہ کا سادہ مطلب ہے کلام پر بے اعتقادی, یا خدا کے کہے پر بے اعتقادی, یا باپ کے کہے پر بے اعتقادی. اور باپ آپ جانتے ہیں, میرا بھی آپ کا بھی, ہمارے باپوں کا باپ بھی جو ہے نا, وہ خداوند یہوہ پاک خدا ہے. تو کیا ہوا, خداوند نے انہیں ایک آرڈر جاری کیا اور ان کو بولا کہ یہ والا درخت جو ہے, یہ والا خاص بیچ میں جو ہے, اس میں سے نہیں کھانا آپ نے. اب چونکہ میسج کے لوگ جو ہیں ان کے پاس مکاشفت, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخت کیا ہے. بیسیکلی یہ سسٹمیٹک سائنس والا دوگلا درخت ہے. اس میں پہچان, عقل ہے نا, نیکی اور بدی دونوں کی کیا ہے, پہچان ہے نا. اور خوبصورت بھی بڑا ہے, کیونکہ دیکھنے میں آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا تھا, اچھا لگتا تھا, اور اس میں سے لے لیا اور کھا لیا. تو وہاں پر کیا ہوا, پہلی گراوٹ ہوئی. پہلی بار کسی انسان نے خدا کے حکم کو توڑا. اور کیوں توڑا؟ کیونکہ بے اعتقادی کی. گناہ کیا ہے؟ بے اعتقادی, خدا کے کلام کو پر اعتقاد نہ کرنا اور کچھ کر بیٹھنا. آمین. تو وہاں پر خداوند نے ایسا نہیں کہ آدم اور ہوا سے وہ خدا ہر روز ملتا نہیں تھا, ملتا تھا, اور ٹھنڈے وقت میں ان سے باتیں کیا کرتا تھا نا. کیا خدا کو پتا نہیں تھا کہ کون اس وقت کس جگہ پر ہے؟ سب پتا تھا. لیکن یہ خدا کی پکار جو تھی, یہ خدا کی پکار جو تھی, ایک پیار بھری پکار تھی اور دکھ سے بھری پکار تھی کہ بیٹا میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا, لیکن تو کر بیٹھا, تو کر بیٹھی. اور آدم کے اندر ہی ہوا, جب آدم کو کال ہوتی ہے, اور مینز کے ہوا کو بھی کال ہوتی ہے نا. ایک مرد کو جب خدا بلاتا ہے, مرد راست کو, اپنے بیٹے کو جو گر پڑتا ہے, جب کال کرتا ہے تو اس کی بیوی یا اس کی فیملی کو بھی بلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ مرد سر ہے, اس لیے کال کس کو پڑے گی, آواز کس کو آئے گی, کس کو آئے گی, کالنگ کس کی ہوگی, مرد کی. ہاللویا. اس نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ تو یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈھونڈ نظر نہیں آ رہا, خدا انڈر اسٹیمیٹ ہو گیا, خدا محدود نہیں, محدود نہیں تھا, خدا لامحدود تھا آغاز ہی سے. خدا کی کوئی حد نہیں ہے نا. آمین. اور جب وہ لامحدود ہے, ہر چیز کا اندر اور باہر کی سب چیزوں کو پتہ, چاہے ظاہر کی ہوں, چاہے پوشیدہ ہوں, ظاہر کی, سمندر کی ہوں, حکومتیں ہوں, ریاستیں ہوں, کوئی بھی ہوں, سب کا پتہ ہے, بنائی اس نے. آمین. اور وہ سپر نیچرل, تو اس کو پتا تھا کہاں پر ہے. لیکن یہ بلاہٹ کا مطلب کیا تھا؟ خدا ان سے بتانا چاہتا تھا, دیکھ لے تو نے مجھے چھوڑ دیا, پر میں تجھے نہیں چھوڑوں.
बताना चाहता था कि अगर मैंने तेरा आगाज किया है तो तेरा बाप तो मैं ही हुआ। कोई क्या कहेगा कि आज बेटा फंस गया और बाप किधर है? अबलीस तो उल्टी छलांगे लगा रहा होगा, और अबलीस उल्टी छलांगे लगाए मेरे बेटे के लिए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, दस्तबरदार नहीं होगा। और खुदा तब भी अपने पहले बेटे से दस्तबरदार नहीं हुआ। आमीन। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। खुदा चूंकि वादों का सच्चा है और रसूल का पक्का है, खुदा ने कहा जो जान गुनाह करेगी, ये उसके यहां पर था, वो उसकी मुशय्यत में, खुदा के इरादे में था। आने वाले वक्तों में भी जो कुछ लिखवाया जाना था, नए में पुराने में जो कुछ भी था, वो सब यहां पर था पहले ही से खुदा के पास। डिसाइडेड था, प्री डेस्टिनेट था, मुकर्रर था। इसलिए खुदा वक्तन फक्तन फिर दर्जा बदर्जा वो जाहिर भी करता रहा मुख्तलिफ नबियों और रसूलों और जजेस, जिनको काजी या सलातीन या बादशाहों पर भी जाहिर करता रहा। आमीन। जिसको उसने चाहा उस पर जाहिर कर दिया, लेकिन पड़ा हुआ था सारा का सारा कुछ आगाज से ही खुदा के यहां पर इरादे के अंदर। आमीन। इरादे के अंदर पड़ा था। अब खुदा ने छोड़ा नहीं, आवाज दी, और क्या बोला? खुदा ने आदम को पुकारा। पुकारा का मतलब क्या है? आवाज दी। जब कोई मिले ना तो फिर बुलंद आवाज में पुकारता है। आमीन। तू कहां है? और आदम आगे से बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी। शुक्र है आदम, तूने बेटों वाला काम किया, पापा की आवाज तो सुन ली। लिखा है खुदा की आवाज शहर को पुकारती है। आमीन। और दानिशमंद लोग, अक्लमंद लोग, हिकमत वाले लोग, द विजडम ऑफ गॉड रखने वाले लोग उसकी आवाज का लिहाज रखते हैं, सुनते हैं। और जब सुनते हैं तो ईमान सुनने से, अगर आप ईमानदार कहलाना चाहते हैं, सच्चे ईमानदार, हकीकी बिलीवर्स, नॉट अ मेक बिलीवर, है ना, नॉट अ नॉन बिलीवर, ये दोनों कैटेगरियां रफ दफ हो जाएंगी, एक ही खड़ा रहेगा। कौन? ट्रू बिलीवर्स। सच्चे परस्तार ढूंढे। सच्चे परस्तार का मतलब क्या है? ट्रू वर्शिपर्स, ट्रू बिलीवर्स। एक सच्चा ईमानदार ही सच्चा वर्शिपर हो सकता है, हो सकती है। और ये बात हमें जितनी जल्दी हम समझ लें वो हमारे लिए उतनी अच्छी होगी। फिर देखिए मौजे होते हैं कि नहीं, शफा की वजह से, वर्शिप की वजह से, कलाम सुनाने से होते हैं मौजे। हालेलुया। क्या हमने मसीह को पा लिया? वहां पर क्या आदम खुदा को पाना चाहता था? नहीं। पर कौन पाना चाहता था? किसको? कोई तो था जो चाहता था कि मैं इसे पालूं, मैं इसे हासिल कर। और आपको पता है जो चीज आपने हासिल करनी होती है उसके लिए आप मारे मारे फिरते हैं। रात को 1 बजे तक भी टाइम लगा कर आते हैं, कहते हैं यार बड़ा लंबा है, नहीं मिला, बहुत ढूंढा है, बड़ी बड़ी बाजारों में गया हूं, बहुत जगहों पे गया हूं, यार मिला नहीं। रिश्ते की बात कर लें, यार पिछले 6 साल से रिश्ते ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं। गल समझ रहे? वो कौन था जिसने फल खा लिया था? बीवी की बात मान, कौन था? एवं ही बंदा था, एवं ही नहीं था। वो ना इरादे से पैदा हुआ इंसान के, खुदा के इरादे से पैदा हुआ था, ना ही किसी के तुखम से पैदा हुआ, इंसानी तुखम से, है ना ही किसी की ख्वाहिश से, बल्कि किससे पैदा हुआ था? खुदा से था। लिखा है लूका की इंजील के 3-4 बाब में, पढ़िएगा हवाला, मैं बार बार पढ़ाता होता हूं। और ऐसी बाइबल नहीं लिखी गई कि इन्ने को हुआ ले तो पढ़ लो तो दूसरे छोड़ दो। सच्चाई बा मुकाबला पूरी सच्चाई। सच्चाई तो सब बयान करते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई यस्सु के अलावा कोई नहीं बयान कर सकता। समझ लेना बातों को, समझ लेना बातों को, और दिल में रख लेना, ज़हन में ना रखना, ज़हन से निकल जाती हैं, उड़ जाती हैं। और 1000 चीजें रखी होंगी, दिल से रखियो जरा, क्योंकि खटाना उन्हें दिमाग दे नहीं है। समझे ना? अब चलते हैं आगे। तो कोई तो था जो किसी को ढूंढ रहा था। क्या आदम ढूंढ रहा था किसी को? नहीं। तो फिर कौन ढूंढ रहा था किसको? खुदा ढूंढ रहा था आदम को। ये हमारी गुनाह के बाद की पहली अवस्था है, जिसको हम पहली सिचुएशन या कंडीशन कहते हैं। पहली हालत है जब हम पैदा ही होते हैं, तो ऐसी हालत में पैदा होते हैं कि हम एक सृष्टि को इनबिल्ट लेकर पैदा होते हैं। हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं वो चीजें, लालच की, और फिर दर्जा बदर्जा बड़े होते जाते तो बढ़ती जाती हैं। और जब फिर हम थोड़े से अपने हाथ पांव पे आते हैं तो फिर हम कहते हैं दुर्दफा। बहुत से लोगों को हम कहते हैं हमसे बढ़कर कोई और समझदार नहीं है। यहीं पर हम खता करते हैं। आमीन आमीन। पता है ना वो सीगुल वाली, मैंने बगले वाली ये कहानी आपको सुनाई थी। जब आप ये समझ लें कि मेरा कोई उस्ताद नहीं और दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझसे ऊपर हो, फिर ही उस्ताद कहोगे ना। आमीन। तो मेरे अजीजों,
वो बगला मछली फेंकता, मुंह खोलता और नीचे आ जाती और पकड़ लेता, है ना। उसने देखा, फारिग बंदा था, उसने देखा, उसने कहा ऐसे है तो फिर मैं भी ऐसे कर लेता हूं। उसने प्रैक्टिस किया, छुरी फेंकी, ऐसे पकड़ लेता था मुंह के साथ, है ना। किसी को पता चला, वो सर्कस में चला गया, बड़ी कमाई होगी। किसी ने पूछा भाईजान बहुत जबरदस्त किस्म का टैलेंट है आपके पास, कहां से सीखा, कौन है आपका उस्ताद, अपलाइन। उसने कहा क्या बताऊं, बगला था। दिल में सोचा, उसने कहा बस मैंने खुद ही सीखा है जी। उस बंदे ने कहा बेटा कोई तो है जिसको तूने इंस्पिरेशन लिए है, जहां से ऐसे नहीं आ जाती महारतें, कोई पीछे बैक पे होता है, किसी वजह से होता है। उसने कहा नहीं कोई नहीं। कहता ला फिर अब करके देख। है तो ये कहने को एक फेरी टेल, एक कहानी है, सच्चाई नहीं है, लेकिन इसमें छुपा बहुत कुछ है। और जैसे ही उसने कहा ऐसे फेंकी छुरी ऊपर, और जैसे मुंह खोला तो सीधी, फिर रुकी नहीं उसके पास। इसका मतलब क्या, जब आप खुद को ही सब कुछ समझ लेते हैं, जब आप समझते हैं कि मैं खुदा से ऊपर तक लगाऊंगा, जब आप समझ लेते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, खुदा ने जो कुछ भी कहा वो देखी जाएगी, तो फिर हालात क्या हो जाते हैं, खराब। वहां पर खुदा अपने बेटे को ढूंढ रहा था। वजह क्या थी, उसमें उसका दम था, उसमें उसका क्या था। और फिर आगे ले चलना क्या था कि उसके उस दम की वजह से आगे जो नस्लें पैदा होनी थी उनमें भी खुदा का दम आना था। खुदा का दम हम में है तो हम चल रहे हैं ना। आमीन। अब खुदा ढूंढ रहा था, आदम ने आवाज सुनी, उसने कहा मैं डरा, मैंने तेरी बाग में आवाज सुनी है और मैं डरा हूं क्योंकि मैं कुछ कर बैठा हूं। इब्लीस यही तो चाहता था कि पछतावा आए और इंसान गिरता चला जाए। उसने बताया, उसने पूछा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है, तू छुप रहा है, तुझे समझ आ गई है, कहीं तूने वो फल तो नहीं खाया। आदम का तो जवाब लिया ही नहीं उसने, उसे पता था कि कहां पर प्रॉब्लम है, इसलिए उसने कहा वो खा लिया तूने, ये मुझे समझ आ गई, इसलिए तू नंगा हुआ है। यानी ये पहला अमल, और उसका रिएक्शन क्या हुआ कि वो नंगे हो गए। खुदा क्या करता फिर रहा था, खुदा बनी इस्राएल को खून की एक धारा दे रहा है, बता रहा है कि वक्ती जानवरों का खून जो है वो लो, है ना, कुर्बानी दो और खून के नीचे आपकी माफी है। वो खून क्या करता था, उनके गुनाहों को क्या कर लेता था, ढांप लेता। आमीन। कौन से गुनाहों को, जो अदन में नंगेपन के गुनाह थे। ये तमसील है, गो के वो पहले भी नंगे थे, लेकिन अब के जब नंगे हुए तो शर्म आना शुरू हो गई। और आज तक हर किसी को नंगेपन से शर्म आती है, वजह क्योंकि कहीं पर शर्म आई थी। आमीन। कहीं पर ये मासूमियत जिसे आप इनोसेंसी कहते हैं, ये खत्म हो गई थी और चालाकी ने जगह ले ली थी इसकी। आमीन। समझे बातों को। सबसे पहले अदन में खुदा ने उनको ऐसी हालत में लाया कि वो बरहना हो गए, नंगे हो गए, या नंगे उन्होंने फीलिंग करना शुरू की। आज दुनिया के इख्तिताम पर, जबकि दुनिया तबाह होने के करीब है, और ईमान का जो कलाम है, सच्चे ईमान का कलाम, जो मैसेज का कलाम है, जो मुकाशफाती रेवलेशन का कलाम है, वो जब आ चुका है इस गुनाह भरी दुनिया के अंदर, तो इब्लीस ने फिर अपने अदन के अंदर लोगों को अधनंगा करना शुरू कर दिया। कैसे? तब भी उसने दो तरह की अकल का फल खिलाया था। क्या खिलाया था? नेकी और बदी की पहचान करवाई थी। साइंस का दरख्त, टेक्नोलॉजी का दरख्त। और जो पढ़ लिखे जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, जो बहुत अपर क्लास में चले जाते हैं, उनके लिए यहां से नजर आना, यहां से नजर आना, यहां से नजर आना फिर आम सी बात हो जाती है। वो कहते हैं ये तो चलता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया के साथ कैसे चलेंगे? आपको किसने कहा कि आप दुनिया के साथ चलें? किसी ने कहा है आपको? किसी ने ऑर्डर किया? यहां पर किसी ने किया है तो चलो। बल्कि ऑर्डर क्या हुआ? क्या हुआ था ऑर्डर? दुनिया के हम शक्ल ना बनो। क्यों ना बनो भाई? क्योंकि उनकी शक्ल बिगड़ती जा रही है। बिगड़, किसने कहा था ये? मुकद्दस पौलुस ने कहा था, खुदा ने कहा था, पौलुस में से होकर। और जब पौलुस पहले कलीसिया फरिश्ते का जमाना था तो पहले में काम शुरू हो गया था, तो अब तो एंड लगा हुआ है, खत्म हो रहा है। सादी सी बात, क्या हमने मसीह को पा लिया? आमीन। खुदा ढूंढ रहा था, और ढूंढते 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 बनी इस्राएल को, है ना, उनको नहीं छोड़ा। गुनाह कर रहे थे, सजा भी देता था पर छोड़ा नहीं, मार भी देता था पर छोड़ा नहीं। एक टाइम आया तो उसने अपने लिए एक बदन तैयार किया, और आप जानते हैं इस सेशन के अंदर एक कामिल बदन दूसरी बार बना। एक कामिल बदन। क्या आदम का बदन कामिल नहीं था? सवाल,
आदम का बदन जो खुदा का पहला बेटा था, बाइबल अजरू है, बाइबल मेरी, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, उसके निसबनामे में आने का मतलब है उसका बेटा होना। और बाय द वे आप भी, मैं भी, हम सब भी उसी तरीके से आमीन खुदा के बेटे बेटियां उसके गजटेड हैं, उसके निसबनामे में, उसके इंडेक्स में है। जब वो देखेगा मेरा बेटा 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 बेटा, अच्छा ये किधर गया, ओ लबो लबो लबो, किथे किथे, अच्छा ठीक है आ गया, ओके ओके, दूसरा, दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे हाजिरी लगती है ना सुबह। क्या ख्याल है? अब यीशु मसीह, आदम जो था खुदा का पहला बेटा था और कामिल था, लेकिन खास बात, आदम ने जो कामिल बेटा था खुदा के कलाम पर एतकाद नहीं रखा। एतकाद का मतलब क्या? उसके कलाम को नाचीज जाना, उसके कलाम को फॉर द टाइम भी अहमियत नहीं दी और अपनी बीवी की बात को अहमियत दे दी। मैं ये कहूंगा बीवी में से इब्लीस की बात को अहमियत दे दी। किसी ना किसी में से इब्लीस आता है ना, समझ आ रही बात की? बहुत दफा बहुत कुछ कह रहे होते हैं, बड़ा आलीशान, बड़ा आला ज़र्फ, बड़ा जीरक किस्म की बातें करते हैं, बड़ी ग्रेटफुल बातें करते हैं, बातें बड़ी अच्छी होती हैं और बड़ों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी, तो माँ बाप क्या फिर कहता है, चलो साढ़े तक तो ठीक है, बच्चों का की करिए। तो मैं आप याद रखें, जो बंदा कह रहा है उसने कुछ भी नहीं करना, उसने तो कह दिया जो कहना था, उसने अपनी ड्यूटी क्या है पूरी कर दी। आपके क्लास का टीचर ने ड्यूटी पूरी कर दी, बाकी आपका काम है घोल के नहीं पढ़ना, उसने दिमाग में डाल देना। लेकिन अगर आपने सख्ती के साथ अमल नहीं करवाया तो हालात क्या हो जाएंगे आगे चल के? खराब ना सिर्फ आपके लिए होंगे बल्कि आपके बच्चों के लिए भी खुदा की नजर में हो जाएंगे। समझे बात को? समझे बात को? आमीन। अब हुआ क्या, पहले बेटे ने बेतकादी का मुजाहरा कर दिया, आमीन, बेतकादी को जाहिर कर दिया, बेतकादी को अमल में ले आया। गो कि उसे पता था कि ये मैं जो कर रहा हूं गलत है। क्या हम जब कोई गुनाह करें, खुदा ना खास्ता, कोई भी ईमानदार बहन या भाई या कोई भी एक बिलीवर बंदा या बंदी, खुदा की बेटी या बेटा कहीं पर गुनाह में गिर जाते हैं तो एक लाशऊरी में आवाज आती है कि ये गलत है, ना कर। आती है, सबको आती है। और ये वो आवाज किसकी होती है? वो खुदावंद की होती है, खुदा के रूह की हिकमत की आवाज होती है, पुकार रही होती है ना कर। पर इंसान क्या करता है? उस आवाज को दबा देता। इसी तरह आदम ने उस आवाज को दबाया होगा। सब कुछ रखते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो माफूकल फितरत खुदा का माफूकल फितरत बेटा हो। माफूकल फितरत कहते हैं सुपर नेचुरल को, जो आम लोगों से फर्क हो, क्योंकि वो भी आम लोगों से फर्क था। किसी औरत और मर्द की शादी के बाद पैदा नहीं हुआ था, खुदा के हाथ के नीचे पैदा हुआ था, खुदा के हाथों से पैदा हुआ था, खुदा के बोले हुए कलाम से पैदा हुआ था। और मैं कहता हूं इसी तरीके से हम सब भी खुदा का शुक्र करते हैं और हमें करना भी चाहिए कि हम सब तो हमसे पैदा नहीं हुए आज की डेट के अंदर। आमीन। किससे पैदा हुए? यूहन्ना पहले बाब के मुताबिक वो खुदा से पैदा थे। हम खुदा से पैदा हुए हैं। कैसे? उसके हुक्म पर एतकाद करके। उसने कहा पानी का बपतिस्मा लो, हमने लिया। उसने कहा यीशु मसीह के नाम का लो, हमने ऐसा किया। आमीन। उसने कहा उसी की तशबीह पे लो, हमने वैसा किया। और जब हमने कर लिया तो हम उसमें से पैदा हो गए। और अगर आज पैदा होकर भी हमें पता नहीं, यकीन नहीं है कि हम पैदाशुदा हैं या नहीं, इसका मतलब है हमें निजात का यकीन नहीं। और जिसको निजात का यकीन नहीं होता, डावाडोल हालत में होता है, वो ईमानदार नहीं होता। वो अजीब तरह की कंडीशन के अंदर वो ईमानदार नहीं है। जबकि हमें पता है कि हमने सच के साथ दिया है, सच के साथ खड़े हैं, इसलिए हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। वो बिल्कुल सही खुदा का बेटा था, लेकिन उसने कलाम पर एतकाद नहीं किया। और जब एतकाद नहीं किया तो वो गिरा। और जब गिरा तो ऊपर एक प्रॉब्लम आई। और प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि उसकी बीवी को सजा मिली। आमीन। और उसको भी सजा मिली कि अब से आराम से चीजें नहीं होंगी, जरा मुशक्कत करनी पड़ेगी। और जरा वाली नहीं, ठीक ठाक वाली करनी पड़ेगी। तब से ये दुनियादारी के मामलात हमारे लिए एक सजा के तौर पर बनी इंसान के बदन पर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम आदम की पहली नस्ल से हमारा बदन है ये वाला। हालेलुया। लेकिन एक टाइम आता है जब नई पैदाइश लेते हैं तो हम खुदा के हो जाते हैं, फिर नस्ल आदम नहीं होते हम। क्या हम आज नस्ल आदम है? सवाल है आपके लिए। आज क्या आप फख्र से कहते हैं दुनिया को कि भाई जी साढ़े पहला बाप ते पहली मां कौन सी? आदम और हवा सी। कह सकते हैं आप? सवाल है बड़ा खास। समझदार हो तुसी सारे। क्या हम उनकी औलाद हैं आज? तो फिर कौन से आदम की औलाद हैं? हम तो दूसरे आदम की। और दूसरे आदम की स्पेशलिटी देखिएगा। पापा जी की स्पेशलिटी बताने लगा।
ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ तो कहते अबू जी, मेरे अबू जी में ये खासियत है। हर कोई तारीफ की माला जपता है कि नहीं जपता? लेकिन ये वाले पापा जी जो हैं, दूसरे वाले, आमीन, इनमें से जो पैदा होता है तो ये पापा जी क्या करते हैं? इनकी खास, मैंने बताया कि जो खासियत है इनकी सबसे अपर लेवल की, इन्होंने दुनिया को एक बात कही, अपने टाइम के बड़े बड़े आलम दीन को ये बात कही, बोला तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित, कोई है, कोई एक है तो निकल के आए। तो मैं ये बताऊंगा ये कौन से गुनाह की दूसरा आदम जिसकी मैं और आप नस्ल हैं। आमीन, हालेलुया। तो दूसरे आदम की हम नस्ल हैं। और उसकी खास बात बताऊं, दुनिया का कोई बंदा ऐसा कह नहीं सका, ना दुनिया के आगाज से ना दुनिया के आखिर तक कह सकेगा कि तुम में से भाईजान कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता। और मैं कहता हूं गुनाह की तारीफ क्या है, गुनाह को आपने बयान करना है। गुनाह क्या है? तो मैंने बताया गुनाह क्या है, क्या है। अब बताओ, बेतकादी यीशु मसीह जब कह रहा था कि तुम में से ऐसा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, तो यीशु दूसरा आदम, हमारा बाप, आमीन, हमारा बाप ये कह रहा था उन लोगों को कि कोई एक कलाम में लिखा हुआ हुक्म जो बाप ने मुझे दिया मैंने नहीं पूरा किया, तो बताओ। कलाम में लिखा था हरामकारी ना करना, मैंने किया क्या? नहीं की। चोरी ना करना, क्या मैंने किया? हमारा बाप कह रहा था उनको। समझो बातों को, सादा लेकिन बिल्कुल सरल, सादी सीधी, समझने वाली। आपके पापा जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, खुदावंद यीशु मसीह जैसा, और आपको पता ही नहीं कि इतनी खास बात उसमें थी। और आप अपने पापा से अगर पैदा हुए हैं, भाई अगर मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि नजर आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नजर आता नहीं, आता भी है नजर। लेकिन मैं चाहता हूं पूरी क्लास फर्स्ट डिवीजन पर आए। दुनिया की क्लासों में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं साबित करूंगा होता है। हमारे यीशु मसीह की क्लास जो है, हमारे यीशु मसीह के जो लोग हैं, फिर मैं निकलता हूं तो बातें लेफ्ट राइट निकल जाती। मूसा मिस्ले मसीह है कि नहीं? क्या मूसा ने कहा था कुछ पास हो गए तो लेके निकलो? उसने कहा एक खुर भी नहीं छोड़ूंगा, सब लेकर जाऊंगा। सब फर्स्ट डिवीजन के लोग हैं, ये सब अलग किए हुए लोग हैं। इनके लिए खुदा का ऑर्डर आया है कि इन्हें लेकर आ, मैं इनका खुदा हूं। उससे कह दे जितना मर्जी, वो बड़ा बादशाह है, तेरे पास जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा आसा है, जा उनसे कह दे कुछ नहीं छोड़ूंगा और सब कुछ लेकर आऊंगा। वो गया और सामने क्या आ गई रुकावटें? कौन आ गए? वहां की मिशन के बड़े बड़े फिरौनी मिशन के पादरी भी आ गए, यनीस और यमरीस आ गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं जाने देंगे, कुछ करके दिखा। फिर उसने करके दिखा, उन्होंने कहा हम भी कर लेंगे। और ये बातें आप सब जानते हैं कि आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी हम फिरौनी चुंगल में नहीं फंसे हुए, हम तंजीमी चुंगल में नहीं फंसे हुए। आज हमारी टांग जो होती है तंजीमी होती है, वो भी ठीक है तो तुसी भी ठीक हो। इंज कदी हो सकता है, वो भी मालिक है तुसी भी मालिक, इंज कदी हो सकता है? खुदा कहता है नहीं कर सकता दोनों की खिदमत। असी जी ठंडे भी हैं तो गर्म भी हैं, ऐसे नहीं हो सकता भाई। हम शुमाल को भी जाएंगे और जनूब को भी। हम शुमाल जनूब मशरिक को जा रहे हैं भाई जान, ये कौन सी डायरेक्शन है? समझ आ नहीं ना, उर्दू का लफ्ज है शुमाल मशरक। मशरक किधर है? इधर है। और शुमाल किधर है? लेफ्ट राइट पे होता ना, ऐसे ही है ना, ऐसे कर लें, इधर कर लें, इधर किसी एक साइड पर। ये तो आड़ा आ गया, इधर मशरिक है इधर शुमाल है। क्या ख्याल है? तो शुमाल मशरक को जा रहे हैं, किसी एक तरफ से निकलेंगे और एक तरफ को जाएंगे, दोनों तरफ से नहीं। या आप सफेद हो सकते हैं, काले हो सकते हैं। मैं जी सफेद काला हूं। और जो लोग मिक्स होते हैं ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता, बहुत ही बड़ी बूहे तो उन्होंने कहते भाई ये तो दे 2 रुपये निकल के परां दा परां ही जाए। मिक्स जो होंगे ने, ट्रांसजेंडर है जी, है ना, कुछ ऐसा लफ्ज़ है। क्या वो अजीब से नहीं लगते आपको? क्या आप जब मिक्स किस्म की जिंदगी गुजारते हैं, है ना, अद्धे तंजीमी, अद्धे बहुते तंजीमी, बल्कि तो थोड़े जे बिलीवर दा टच। क्या ख्याल है? बहुत बड़े धोखे के अंदर हम। खुदा मुसलसल बताता जा रहा है धोखे से निकलो। खुदा वन साइडेड लोगों को पसंद करता है, एक ही तरह के बीज खेत में डालना उसको पसंद करता है। हालेलुया। तो मेरे और आपके पापा बादशाहों के बादशाह, द किंग्स ऑफ किंग, खुदा यीशु मसीह ने एक बात कही थी। क्या कहा था?
तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? एनीवन, कोई, एनी बॉडी, कोई आ जाओ। क्या आप कह सकते हैं? आज इधर से गुजरते कह सकते हैं गुनाह है तो बताओ मुझे। बोलेगा कि नहीं कुछ दसा है आप ही खुजी पे और टकेदा ना होवे समझ रहे ताडे कट के विखा देगा। तुसी कहोगे ले आप ही टकेदा नहीं तो मैनू ते तैनू ओदे नाल की लगे, तुझे उससे क्या लगे? वो आधे टके का भी ना रहे। तू जो बेशकीमत है, तेरी को कीमत नहीं लगा सकता। तुझ पर किसी समझदार बंदे ने कही, मैं पिछली लास्ट मीटिंग में कहा था, अगर कोई बुरा शख्स आपके मुतल्लिक बुरा बोले टेंशन नहीं ले, लेकिन अगर कोई अच्छा शख्स आपके लिए बुरा बोले तो फिर आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। यार तो अच्छा ही बहुत सी है, क्यों बुरा कह रहे हैं मैंने? लेकिन मामलात क्या होते हैं, जब बुरा शख्स आपको बुरा कहता है तो आप सीधी सीधी सुनाते हो, और जब अच्छा शख्स आपको बुरा कहता है तो फिर आप कहते हो आज तो बाद दे चर्च जान दी लोड़ की है, ये ना बहस ते कर नहीं सकते। तो ये मसले का हल नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। मेरी बात समझे हैं तो बोलो आमीन। खुदा बरकत है। क्या हमने मसीह को पा लिया? मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर। बड़ी ही बेदार कर देने वाली आयत है, फखरिया किस्म की पेशकश वाली आयत है। कोई बंदा ऐसा कह नहीं सका, नबियों में, रसूलों में, पैगंबरों में, जितने भी जमीन की क्रिएशन है इंसानों की, उनमें से कोई आज तक नहीं कह सका। वाहिद यीशु मसीह को यह हक हासिल है, और मेरे और आपके पापा हैं वो। पुराने अहदनामे का यहोवा पापा जो था वो यीशु मसीह के में होकर पापा बन गया। समझ लें बात को। और वो कहता है कि और कौन सा गुनाह कौन सा कह रहा था, पूरी बाइबल में जो कुछ लिखा था खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे मैंने उस पर एतकाद रखा है। लिखा का मतलब उसको जो दिया गया था, खुदा ने जो कहा था, जो कलाम मौजूद था, उस सब के मुतालिक बोला निकालो असूल, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब निकालो, जो हमारे सेनेटर्स पढ़ते हैं, जो मुल्क के कवानीन है, तो इसके लिए मजहब के कवानीन निकालो जिसमें कि मैं खिलाफ गया हूं, बताओ मुझे, जिस पर मैंने एतकाद नहीं किया। सब कुछ किया और यीशु मसीह ने अपनी जान देकर पूरी शरीयत को पूरा किया। मतलब क्या? शरीयत खुदा का कलाम, हालेलुया। जो कुछ था सबको पूरा किया, और जब पूरा किया तो पूरा करने का मतलब क्या है? पूरा करने का मतलब क्या है कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मेरा इस पर एतकाद है, मैं इसे पूरा करूंगा। क्या यीशु मसीह की जिंदगी में मुश्किलात नहीं आई? पापा की जिंदगी में मुश्किलात नहीं, बहुत सी मुश्किलात आई। आंखों पर पट्टी सर पे मार मार के कह रहे हैं बता नबूवत से किसने मारा? क्या थोड़ी बेइज्जती हुई? थूका जाना फेस के ऊपर, दाढ़ी को नोच लिया जाना। क्या आज हम अपने भाई या पापा के बारे में ऐसा कुछ अच्छा समझेंगे कि ऐसा हो जाए? नहीं। क्या होगा? तो उस पापा के लिए क्या? बस खैर है यार, 50 सालों से लिखा है किताबों के अंदर, हजारों सालों से, बस पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ, वो आपके लिए पढ़ा हुआ है। वो कहता है मैंने इतना कुछ तेरे लिए किया, और तू इतनी पहचान नहीं करवा सकता कि मैं पापा जी का बेटा हूं। कौन से पापा जी? किन्नू मानते हो तुसी? साई हुंदे हो तुसी? नहीं, हम साई नहीं होते, हम सही होते। हम रसूली कलीसिया नहीं होते, हम असूली कलीसिया होते। समझ लो बात को। असूल कौन से? रेवलेशन के असूल। रेवलेशन से बड़ा बाइबल का कोई असूल नहीं। आमीन। असूल किसे कहते हैं? इस असूल के तहत बाइबल मसला जो कलाम है, जो सवाल है, उसको हल करो इस असूल के मुताबिक, हल हो जाएगा। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं शॉर्ट टाइम में। तो यीशु मसीह ने कहा, उसने एतकाद रखा, और जब एतकाद रखा और हम उसकी पसली में से पैदा होकर खून और पानी के जरिए से हमारा जन्म हुआ, और आज तक हम जिंदा हैं यीशु मसीह के हुक्मों के बायस, पापा जी के हुक्मों के बायस, तो फिर हम में वो वाला स्लोगन किधर गया? वो वाली धाड़ किधर गई? आमीन। वो शेर यहूदा वाली धाड़, शेर यहूदा का शेर बबर वाली धाड़ किधर गई? क्या ख्याल है? आमीन। अगर नहीं है तो वो ढूंढो भाई। आपको पता है, एक कहानी हम पढ़ा करते थे, शेर का बच्चा जो है वो धाड़ ढूंढने के लिए निकला था। किसने पढ़ी है कहानी? रोर अपनी जो धाड़ है उसकी, है ना, उसको ढूंढने निकला। बच्चा था ना, तो कहता है पापा जैसे धाड़ते हैं मैं भी धाड़ूंगा। इस लेवल पे जाकर तो धाड़ ढूंढने में टाइम लगता है। क्या लगता है? कौन सी है वो धाड़? धाड़ को कहते क्या है? पुकार, गरज। क्या है? ये है गरज। और बाय द वे मैं बताऊं आपको, हालेलुया, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। हुआ क्या है? ये एक बार नहीं गरजा खुदा, 7 बार गरजा। 7 कलीसियाएं। हम क्या हैं? कलीसिया या कौम? बोलिए जरा, बोलिए जरा। कलीसिया। कलीसिया कौन सी?
ब्राइड चर्च, दुल्हन कलीसिया। जो सिर्फ कलीसिया और कौम होते हैं उनमें कुछ ना कुछ है ना रंग रिंकल्स रहते हैं, कुछ जुरियां होती हैं, कुछ दाग होते हैं, है ना, कुछ तंजीमी दाग होते हैं, कुछ जनाब जी अबाओ अजदाद की रस्मों वाले दाग होते हैं, क्या नहीं छड़ना पावे कुछ भी हो जाए, शॉर्ट करता हूं, आमीन। लेकिन यस्सु को क्या चाहिए? यस्सु मसीह को बेदाग चाहिए, क्योंकि यस्सु खुद भी क्या है? ये दाग क्या बला होती है भाई? किसको दाग कहते हैं? कैरेक्टरलेस होना, किरदार की बदनामी का होना, आमीन, नेक नामी का ना होना। यस्सु नेक नाम भी था, बाकिरदार भी था, बाइखलाक भी था, और कलाम पर पूरा पूरा एतकाद A to Z रखने वाला बाप था। यीशु मसीह खुदा था, आमीन। वो ऐसा शख्स था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में हर तरह की आजमाइश को फेस किया दिलेरी के साथ, और फिर कलाम पर पूरे एतकाद के साथ। ये है फुलफिलनेस, यीशु ने उसको पूरा किया और आज तक रूह की हालत में पूरा कर रहा है। उसने कभी भी आदम और उसकी नस्ल को छोड़ा नहीं, साथ साथ रहा और ढूंढने निकला, आमीन। और जब यीशु जमीन पर था तो किनके बीच में चल फिर रहा था? क्या हमारे बीच में? यीशु मसीह अपने फर्स्ट सेशन के अंदर, फर्स्ट सेशन कहते हैं पहले हिस्से के अंदर, जब आए जमीन पर, है ना, ध्यान दोगे तो बरकत मिलेगी, सादे लफ्ज़ कह रहे हैं हम। पहले सेशन में कहां पर आए? उच्ची बोलो, बहनें भी बोल सकती हैं। हाँ, बनी इजराइल में, दुनिया में तो आए लेकिन बनी इजराइल में आए। स्पेशली एक क्राइटेरिया टेरिटरी में आए, और वो कौन सी थी? इजराइल की। और फिर यीशु ने एक टाइम पे कहा भी था, क्या कहा था? मैं सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही भेजा। तो टाइम किसका चल रहा था? इजराइल का, आमीन। तो ये जब यीशु अंजीलों में बात कर रहा है तो किससे कर रहा है? अंजीलें किस टाइम पर, किस टाइम को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, पेश करती हैं? कौन सा टाइम दिखाती हैं? यीशु की बातें जब हो रही हैं जमीन पर, तो कहां पर यीशु चहलकदमी कर रहा है? किनको कह रहा है? पादरियों को नहीं, फकी फरीसियों को कह रहा है। वो अलग बात है, हम एक रेवलेशन लेते हैं क्योंकि खुदा का कलाम आज कल बल्कि अब तक तब्दील एक जैसा है सबके लिए, वो तो हम पुराने अहदनामे से भी लेते हैं, और हमें दिया ही इसलिए गया कि सब कुछ हमारा है। इन सब में मेरा और आपका यीशु था। इन सब में दो कैरेक्टर खास थे। कौन कौन से? दूल्हा और दुल्हन का, चाहे वो बीच की किताब हो, आदम और हवा हो, आमीन, और चाहे वो आखिरी मुकाशफे की किताब को, बर्रा की बीवी ने उसकी अपने आप को, है ना, शुरू भी बीवी और हस्बैंड से और आखिर भी बीवी और हस्बैंड से। और वो बीवी और हस्बैंड को दुनिया दिया, है ना, फेरी टेल वाली कहानियां वाले नहीं आगे द्योमा लाई, और मैं तो तुसी हुई चलते हैं। हुआ क्या यहां पर? हमें एक बात समझ लेते हैं। अब यीशु मसीह के बारे में 4 अंजील लिखी गई, और यीशु मसीह तब किन में है? गैर कौमों में नहीं है। कहां पर है? टाइम कौन सा चल रहा? बनी इजराइल का। और वहां पर क्या कह रहे हैं? एक बात कही उन्होंने जो हमने मत्ती 7:7 में पढ़ी। क्या पढ़ी थी? बड़ी मशहूर आयत पढ़ी थी सबसे आखिर में, ढूंढो, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ये किस ढूंढने बात की जा रही थी? ढूंढने की, किस तरह की सीकिंग, जिसको सर्चिंग कहते हैं, उसकी बात हो रही थी। बताइए जरा। और किन को कह रहे थे? बनी इजराइल को कह रहे थे। खुदा बरकत दे आपको। एक टाइम था खुदा ने खुद ढूंढा और खुदा ने पा लिया। पाया था कि नहीं? खुदा ने पा लिया ना आदम की नस्ल को, पा लिया था, उन्हीं के लिए आया हुआ था, इसलिए पा लिया था तो आया था ना। ओके, पा लिया का मतलब होता है कि हासिल कर लिया। सही होगी बात? जिस मकसद के लिए निकले वो हासिल हो गया। आगे चल के खुदावंद कह रहा है ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे? क्या ढूंढोगे? क्या था जो आदम को भी ढूंढना था? मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तूने मुझे ढूंढा? तो क्या बनी इजराइल, आज का बनी इजराइल, आज का बनी इजराइल मसीह को पा चुका है? सवाल है बड़ा सीधा सादा और सुथरा सा, जवाब भी बड़ा सीधा सादा और सुथरा सा है, वो आप देंगे, मैं नहीं दूंगा अभी। बनी इजराइल जो आज भी मौजूद है, उसका वंश, उसकी नस्ल मौजूद है, बीज मौजूद है, क्या वो यीशु को पा चुके हैं? वो तो पाना चाहते हैं भाई। कौन से वाले को? जो लोहे के आसा से हुकूमत करेगा। क्या ख्याल है? यीशु कह रहा है ढूंढोगे यानी पाना चाहोगे तो पालोगे। उन्होंने क्या पाना चाहा? जी पाना चाहा, पर अपने तरीके से। क्या यीशु मसीह ने यह नहीं कहा अगर तुम अपने बाप इब्राहिम की नस्ल होते तो मुझे जानते कि तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, ख्वाहिशमंद था, और उसने देखा। कहते हैं
ये कैसी बात कर दी, ये बात तो मानने के काबिल ही नहीं, ये तो इतनी बिद्दत छोड़ दी इसने, ये तो यूसुफ और है ना, उनको तो यही नजर आता था यूसुफ और मरियम का बेटा है। आज भी लोगों को ना तंजीमी सेटअप में सब कुछ नजर आता है और उसी पर ना वीडियो बनाई फिरते हैं, यूट्यूब लगाई फिरते हैं और उसी पे कहते हैं यार देखो यार झूठे लोग। भाई झूठ का पलंदा तो आपकी आंखों पे पड़ा हुआ है, जरा खोलो चुको अगोन सेरा। क्या ख्याल है? ये पहली बार थोड़ी हुआ कि आज के जमाने में ऐसा हो रहा है, उस टाइम पर भी ऐसा ही था। लिखा है ये लोग क्या हैं, होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, इनके दिल मुझसे दूर हैं, है ना। फिर क्या है, मैं इनसे तमसीलों में बात करूंगा ताकि ये देखते हुए ना देखें और सुनते हुए क्योंकि इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों को। और लिखा है कि एक हिस्सा जो है इजराइल का वो सख्त कर दिया गया है ताकि वो हकीकत को ना जाने। तो उन्होंने पाया क्या? नहीं पाया, पर चंद थे जो आगे एक साइड पर निकलकर। वो कौन थे? 12 रसूलों के अंदर, आप जानते हैं सारा। आमीन। अगर उस वक्त चंद थे तो आज कौन से लाखों लाख में हैं जो निकल कर अलग हुए हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने, उनको कहना पड़ा खुदा को, ढूंढोगे तो क्या है जी, पाओगे। पर क्या उन्होंने ढूंढ लिया और पा लिया? नहीं, सबने नहीं। चंद एक ने जो ना होने के बराबर थे। मैं ये कहूंगा चंद एक ने जो आटे में नमक के बराबर थे, और इतना भी बहुत है। खुदा को चलता है इतना भी, खुदा को इतना ही चलता है, इतना ही चलता है। इतना भी है ना तो जायका बना रहे, बस इतना चलता है। समझ रहे मेरी बात? और आप, मैं बताऊं आपको, आप दुनिया की जितनी तंजीमें हैं ना, उनके लिए नमक है, जायका है। जिस दिन आप उठ गए ना, तंजीमें खुदा ने माफी नहीं देनी उनको। आपकी वजह से रुका हुआ है वो, आपको उठाएगा, दुनिया से रैप्चर देगा। हालेलुया। अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को, अपने ब्राइड चर्च को उठाएगा, जिसमें ना रिंकल होगा किसी तरह का, ना कोई सलवट, ना कोई दाग, ना दबा, ना जुरी होगी, बल्कि सरतपा क्या हो जाएगी, फुलनेस ऑफ सेक्रेट होना, जिसको आप कहते हैं मुकद्दस होना, पाक होना कहते हैं, तकदीस शुदा जिसको आप कहते हैं, सैंक्टिफिकेशन, सैंक्टिफाइड। जो ब्राइड है उस वो खुदा उठाएगा, है ना। तो उन्होंने नहीं पाया और आज तक नहीं पाया, और वो किसी वहम के अंदर है। इसी तरह आज तंजीमों के अंदर भी है, उन्होंने खुदा को पाया नहीं, लगता है उनको पा लिया है, उनको लगता है कि उन्होंने पा लिया है। तब भी यीशु मसीह के बारे में उन्होंने क्या क्या लफ्ज बोले? किन्होंने बोले? नॉर्मल लोगों ने, क्या आम जनता ने बोले कि तुझ में बाल-ज़बूल है, तुझ में, तू शैतान की मदद से ये करता है वो करता? किन लोगों ने बोले थे? आम लोगों ने नहीं, आम लोगों ने नहीं। किन्होंने? आलम दीन। आलम दीन किनको कहते हैं? अपने जमाने के पादरियों और काहिनों को। क्या आज आपको वीडियोस में, क्या आज आपको सोशल मीडिया पर मैसेज बिलीवर के खिलाफ अजीबो गरीब तरह की बुरी बातें कहते हुए लोग नजर नहीं आ रहे? ओ यार ये क्या है? मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता कि जो कुछ वो कह रहे हैं। क्या यीशु के बारे में ऐसा नहीं बोला गया था? पाक कलाम में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, यीशु मसीह ने वहीं पर एक बात कही, और ये बात बड़ी मशहूर मारूफ है। इस बात को जरा रख लीजिएगा और इस बात का जरा रेवलेशन समझ लीजिएगा। क्या है? यीशु ने कहा, वो बातें जो तुम बेटे के खिलाफ करते हो, यानी मेरे खिलाफ करते हैं, वो तो तुम्हें माफ हो जाएंगी, इजी हो जाओ। कहते शुक्र है, कह दिया तो कोई नहीं, माफ हो जाएगी। उन्हें क्या सी? लेकिन जो तुम रूह के खिलाफ बोलोगे, वो ना इस जहान में ना ही, ऐसा लिखा है वहां पर, ना इस जहान में ना उस जहान में माफ होगा, कभी नहीं, उसकी माफी नहीं होगी। ये कौन से रूह की मुखाल, क्या गैर ज़बान की बात हो रही थी? नहीं, उसकी नहीं हो रही भाई। मुकाशवा पढ़िएगा, 7 रूह हैं एक खुदा के अंदर, 7 स्पिरिट्स। ये 7 रूहें कब आई थी और ये किस में से आई थी? बताइएगा जरा। खुद से ही आ गई? नहीं, खुद से नहीं आई, भेजने लिखा। जब तक भेजे ना जाए मुनादी क्यों करें? 7 फरिश्तों को 7 कलीसिया द्वार के अंदर, पीरियड्स के अंदर, टाइम्स के अंदर भेजा गया, टाइम मैसेंजर बना करके। तो क्या देकर भेजा? वो 7 रूहों का रेवलेशन दिया गया। अपने अपने जमाने में रूह को भेजा, और वो रूह किसका था? क्या उस पादरी का? क्या उस फरिश्ते का? ऐसे ही है ना, 7 फरिश्ते आए ना। बात समझ रहे हैं ना? सवाल जरा मुश्किल नहीं, आसान है। तो उनमें किसका रूह था? वो जब बता रहे थे टाइम टेल के ऊपर, जब जमाने खत्म हो रहे थे, तो वो आते थे बिगाड़ को सही करने के लिए, ताकि जोड़ टूट ना जाए कहीं, दूसरा जमाना शुरू हो, जोड़ लगे, सच्चाई के साथ जोड़ लगे।
और वो सही करते, कुछ टाइम निकलता, टेल के तक पहुंचते पहुंचते फिर खराबी आ जाती। और ये शुरू से है। आमीन। वो 7 रूहें जो थी वो क्या थी? खुदा का रूह था भाई, जो उस टाइम पर आगाज में पानियों पर जुम्बश, और पानी किसकी इलामत है? कौमें, उम्मतें और कबीले। मुकाशवा में लिखा है, इसकी इलामत को बताया गया है। मुकाशवा की किताब इलामतों की किताब है, निशानों की किताब है, डायरेक्शंस की किताब है, बिल बोर्ड्स की किताब है। उसको देखकर समझकर आप अंदाजा लगाते हैं कौन से जमाने में, कौन से लोगों में, किस तरह की कलीसियाओं में, किस तरह के रूहानी जिस्मानी दुनिया में रह रहे हैं, आपको पता चलता है। अगर आप ध्यान लगाएं तो आपको पता चलेगा। और ध्यान लगाने का दूसरा मतलब है, ढूंढोगे तो, ध्यान ही लगाना तो ढूंढना कित्थों में। ध्यान का मतलब यही होता है, पुत्र ध्यान ला, मतलब कि इत्थों ही लबड़े सब कुछ। क्या ख्याल है? तो क्या हुआ? ये है रूल कुछ लिखा है, हर जमाने में नबियों के अंदर मसीह का रूह होता है, और जो रूह मसीह से निकलता है वो नबूवत का रूह होता है। चाहे वो फरिश्तों के ऊपर आए, जो 7 कलीसियाई जमाने के फरिश्ते हैं, परों वाले नहीं, जमीन वाले, हम ही जैसे, हम में से ही, इंसानों की तरह के। और लिखा है नबूवत जो है, नबियों के अंदर किसका रूह है? मसीह का रूह। और नबूवत से बड़ा पैगाम जो फरिश्ते के जरिए आता है कोई भी नहीं होता। आमीन। यीशु ने कहा, बेटे के बारे में तुम कहते हो ये तो नासरत से ये है। ये मैं पॉइंट जरा समझा दूं, ये तो यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं, यहां तक तो ठीक है। क्या नासरत से अच्छी चीज निकलती है? इसका मतलब है ये मुझे अच्छी चीज नहीं समझते हैं। इसके भाई बहनें यहां नहीं, यहां पे मुझे अजीबोगरीब समझ रहे हैं। फिर आगे चल के इतना मारा कूटा और बेइज्जत किया और बहुत कुछ और भी किया। हमेशा उसके खिलाफ रहे। उसने कहा कोई मसला नहीं, तुम मेरे खिलाफ कहते हो, मैं तो माफ कर ही दूंगा। और यीशु ने सलीब पर किया। लेकिन जो तुम मुझे कह रहे हो कि ये तू शैतान की मदद से करता है, तो ये तो मैं खुदा के रूह की मदद से करता हूं। तो तुमने रूह को क्या बोला? शैतान बोला, बालजबूल बोला। आमीन। बदरूहों का सरदार और किस्मत का हाल बताने वाला बोला। ऐसा लिखा है पाक कलाम के अंदर, पढ़िएगा। क्या था? ये माफ नहीं होगा, ना इस जहान में ना उस जहान। मतलब क्या? जो कलाम खुदा लेकर आता है, टाइम रेवलेशन आपके लिए, जब आप उसकी तहकीर करते हैं। और आज देखें आप पेज के ऊपर, क्योंकि हमारा रहता है पाला, लोग अजीबो गरीब किस्म की वाहियात बातें करते हैं मैसेज के खिलाफ। मैसेज किसी की जेब से नहीं आया, मैसेज किसी सेमिनरी की इख्तरा नहीं है, उसका बनाया हुआ नहीं है। और जो सेमिनरी के लोग बात करते हैं वो सेमिनरी की रूह से करते हैं। जो बिलीवर्स करते हैं, एंड मैसेज बिलीवर्स के लोग बात करते हैं, वो नबूवत की रूह से करते हैं, वो रेवलेशन स्पिरिट के साथ करते हैं। आमीन। और खुदा का कलाम जो है वो रूह ने लिखवाया, किसी सेमिनरी ने नहीं लिखवाया। वो रूह से भरा हुआ कलाम है, वो सेमिनरी के लाइनों से भरा हुआ कलाम नहीं है। अगर लाइनों को लोग सेमिनरी से समझ सकते तो आज हर कोई रूह से भरा होता। लेकिन रूह से भरा हुआ बताता है कि कौन बंदा किस तरह का, उसके पास परख होती है, डिजर्नमेंट होती है, समझ होती है। आमीन। हिकमत की ऐनक होती है उसके पास। हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझें। और जब तक आप हिकमत को नहीं पा लेते, जब तक आप खुदा के रूह के नबूवती मैसेज को नहीं पा लेते, आप खुदा से दूर है, आपने खुद ने उसे पाया नहीं। और यही कमजोरी बनी इस्राएल के अंदर थी। यस्सु बीच में था और वो उसे पहचान ही नहीं सके। पहचान का रूह होता तो पहचानते ना। आज कलीसियाओं के पास बहुत बड़ी बड़ी सेमिनरियां, बहुत बहुत कुछ है। सॉरी मैं ये कह रहा हूं, और ये मैं कहूंगा, इसलिए कहूंगा क्योंकि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं पर आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। यही चल रहा होगा कि ये बहुत है ना यार, और क्या चाहिए? डिग्री तो चाहिए। डिग्री कुछ नहीं होती, डिग्री कुछ नहीं होती। भाई ब्रानम अपने एक मैसेज में बयान करते हैं, इब्रानियों 7 बाब का वो मैसेज देते हैं, तो कहते हैं आपको कोई ना जानता हो, ना जानता हो, आप जितने मर्जी नकम्मे हैं, जो कुछ मर्जी है, लेकिन अगर आप प्री डेस्टिनेटेड हैं, पहले से मुकर्रर शुदा हैं, अपने टाइम पर ऐसे निकल कर बाहर आएंगे, ऐसे आ जाएंगे ऊपर। दुनिया हक्की बक्की रह जाएगी। ये भी हो सकता था। ये क्या हो गया? मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? तो जिसके पास रूह होता है वो रूहानी बेटा या बेटी होती है, और जिसके पास सिर्फ सेमिनरी होती है वो या तो पादरी होता है या पादरानी होती है। वो कहती है मंतक से बात करो, आयत दो, पूरी बाइबल को रटा हो शायद उन्होंने। आमीन। लेकिन अगर उनसे रेवलेशन पूछा जाए तो सर नीचे और टांगे कहते ना ऊपर हो जाएंगी। हालेलुया। बातों को समझे। यीशु मसीह उनके बीच में था। यीशु मसीह रूह से भरी बातें कर रहा था, और उसने कहा मैं जो कहता हूं करता हूं, मैं खुद से नहीं करता बल्कि खुदा को जो करते हैं अपने बाप को करते देखता हूं। कहां पर देखता हूं? मैंने बताया था, रोयाओं में, विजन्स में। आप कहते हैं अखा बंद करके सोचो, क्या देखा? उठे से बड़ा कहने की नजर आया नू,
ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। वो सारे विजन पक्के ने और फटाफट ईमान भी है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो खुदा दे बंदे हो। अभी भी इसी तरह नहीं, अभी इसी तरह नहीं, अभी इसी तरह इस विजन के साथ चल रहे हैं हमने। यस्सु इस विजन, ये यस्सु के विजन्स हैं। ये बाप की जो चल रहा था इरादे के अंदर, वो यस्सु के आया इरादे के अंदर। आमीन आमीन। एक वक्त था पहले आदम के पास भी ये सारा इरादा पता था उसे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसने जानते पूछते गुनाह किया और बीवी की बात मानी और वो सारा कुछ उससे ले लिया गया। फिर दूसरा आदम आया, उसने जानते बूझते हुए मेरे और आप जैसी बुरी कलीसिया, बुरी दुल्हन के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन कलाम को पूरा किया। कलाम को उसने पूरा किया। पहले आदम ने कलाम को पूरा नहीं किया, जान तो दे दी लेकिन कलाम को पूरा नहीं किया। और मैं अगर कहूं कि कहीं ना कहीं उसने भी पूरा किया तो ये बात गलत नहीं होगी। कैसे? क्योंकि खुदा ने पहले क्या रखा था, क्या कह रहा था, क्या रखा था? आदमी अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला, और वो पहला काम पूरा किया किसने? आदम ने, वो बीवी के साथ मिल गया। आमीन आमीन आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो हुआ क्या यहां पर? उन्होंने खुदावन को उन्हें कहना पड़ा कि ढूंढोगे तो पाओगे, पर उन्होंने यीशु मसीह को आज तक नहीं पाया। आमीन आमीन आमीन। मुझे बताइए इब्रानी सीखने से क्या होगा? इब्रानी के कॉलेज खुले हुए हैं, यहां पर है, काफी कॉलेजेस हैं। इब्रानी यूनानी का कोर्स कर लें भाई, क्या कर लोगे? करके क्या कर लो? वो जुबान जो किसी को समझ नहीं आती आप सीख लोगे। चलो थोड़ी देर लोग समझेंगे भी कि यार वाह वाह क्या बात है, लेकिन वाह से क्या होगा? क्यों जी? रोड बड़े अच्छे बन गए हैं, बाजारों में बिठाओ मजदूर को, उसको पूरे रोडों पे चक्कर लगाओ, पराडों के अंदर, बाद में उतारो, बोलो कैसा लगा, वो क्या बोलेगा? भाईजान भूख लगी है, समझ आ रही गल दी? भूख लगी है, पराडों में बिठाया, आपको इतने जबरदस्त रोडों का चक्कर लगवाए, एसी वाली गाड़ी में बिठाया, ये बहुत नहीं था, वो कहता है ये बहुत नहीं था, लगी हुई है रोटी। तो इब्रानी सीखने से क्या होगा? उत्थे ही आओ। यूनानी सीखने से क्या होगा? और अगर मैं ये कहता हूं तो क्या मैं यूनानी इब्रानी का मुनकर हूं? नहीं। इब्रानी यूनानी में खुदा का कलाम आया था, किन के लिए आया था तब? किन के लिए आया था तब? और किन के जरिए आया था? बाय द वे ये भी जरा समझ लो, लोग की कहते किताब उतरी सी इंज नहीं है, नबियों के यहां पर आया था, और यहां से फिर पादरियों के, फिर पादरियों के आगे फिर कलीसिया के यहां पर आया था। और जिस किसी ने यहां पर आए हुए को यहां पर उतार लिया, उसने पक्का लॉक ला लिया, उन्हें पक्के हो जो थे। समझो कि नहीं समझे? अब हुआ क्या वहां पर? यीशु मसीह कह रहा है ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढेगा कौन? कोई तो है जो ढूंढेगा, हैं? लिखा है आखिरी जमाने में लोग तहकीक और तफ्तीश करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ढूंढना, ज्ञान लगाना, ध्यान लगाना, मेडिटेट करना। समझ आ रही गाल दी? तो वो ढूंढ नहीं पाए। फिर यीशु मसीह आ गए, जान देकर चले गए, तो पहला सेशन क्या हो गया? क्लोज हो गया, बंद हो गया। और जाने से पहले एक सेशन की आप बता कर चले गए कि ये वाला सेशन खुलेगा भाई, और वो सेशन क्या था, वो दौर क्या था, वो टाइम क्या था, वो पीरियड कौन सा था, वो वाला दर्जा कौन सा था गैर कौमों के लिए। क्या यीशु ने खुद बदन में रहकर वो किया? नहीं, फिर रूह में रहकर किया। और रूह किन में आया? 12 रसूलों में। और फिर उसके बाद रसूली खिदमत का आगाज हुआ, चलते 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 120 ने आगे चल के पूरी दुनिया में बेदारी को पैदा कर दिया। ये था कलाम पर एतकाद, ये था तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे कि मैंने कलाम की किसी बात पर एतकाद नहीं किया। 12 रसूलों ने और 120 की जमात में ने सब ने लेकर के पहले ही वाज के अंदर पतरस ने 3000 के करीब लोगों को शामिल कर लिया। यार ये कैसा वाज था? सेमिनरी का क्या? सेमिनरी का होता तो 5-4 औरतों को भी साथ में लेकर आता, आओ जो तुसी ताडू केड़ी तुसी भी कर सकती हैं कलाम। और कहने नहीं, खुदावंद ने कितने चुने थे? कौन चुने थे? ये चुने थे। उसने 11 को साथ लिया और 12वां खुद, और वाज किया, क्योंकि उस खुदा ने कहा था तू कैफा होगा। कैफा का क्या मतलब? हेड, मॉनिटर, लेकर चलने वाला। और बाय द वे पुराने यादनामे के अंदर भी और नए में भी सरदार काहिनों को भी कैफा काहिन कहा गया है। समझे कि नहीं? और बोला, और जब वो बोला तो बहुत लंबी चौड़ी स्पीच नहीं है। जब स्पीच दी तो रूह से भरी हुई स्पीच थी, दिल पे लगी, वो प्रीचिंग दिल पे लगी, और जब दिल पे लगी तो दिल टूटा, और जब टूटा तो उसने कहा ए भाइयों क्या करें? तो सादी जी गल, सादी जी गल ही थे खुदा निकोदिमस नु समझा रहा सी। कहता तू वाह 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 खुदावन तू बहुत अच्छा है, तो रात नू क्यों आया? फिर दिने आके दस ना जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा।
रातों रात आके ते ना विचों विच तारीफ भी करी जाओ ते उधर भी लाते ते उधर भी लाते। समझ आ रही गल दी? पकड़ रहे हो ना गल्लां नूं? साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो यसू ने क्या बोला? तारीफ बहुत हो गई भाई, अगली सुन ले। और वो क्या है अगली? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। है एक ही गल, ए गल समझ नहीं आई। उन्हें कहा मैं फिर कह देना, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को ए कम कर। उसने कहा ऐसे वैसे तैसे कैसे होगा? मां के पेट में दोबारा। उसने कहा तू बनी इजराइल का क्या है? तू बनी इजराइल का उस्ताद होकर इन बातों को नहीं समझता? तो तेरी सेमिनरी का क्या मतलब? नहीं जी, हमें तो जो करेगा ना कलाम से बाहर। कलाम से बाहर का मतलब समझते हो? ये कलाम एक रेवलेशन को खोलता है, उससे बाहर नहीं होना। बात समझ रहे को नहीं समझ रहे? खुदा बरकत दे। इन बातों को समझें। यूनानी इब्रानी सीखने से कुछ नहीं मसला हल होगा, रेवलेशन को जानने से मसला हल होगा। आप पूरी बाइबल पढ़े या नहीं पढ़े, 1 से 2 मास्टर कीज पकड़ लें, पूरी बाइबल को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। कोई भी जिस टाइम भी पढ़े, बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब क्या? मैथ की किताब का आपके जेब आपके बैग में होना बड़ा ही जरूरी है, पर एक कुलिया है जिसके मुताबिक वो समझी जाएगी। आपके पास सिलेबस की सारी बुक्स का होना, बीच में पूरी 5 से 6 किताबें जितनी भी होती हैं होना जरूरी है, लेकिन उस किताब के आखिर में कुछ जवाब भी हैं, उनको भी देख लो। इन किताबों के चलते में एक अलग से किताब मिलती है जिसको प्राइमरी गाइड या गाइड कहते हैं या पिक मी अप कहते हैं या ग्रामर कहते हैं, उसको भी साथ में रख लो। और बाय द वे जो जोरावर फरिश्ता उतरा तो उसके हाथ में वही ग्रामर थी, वही वाली पिक मी अप थी। बात समझ रहे हो? वही 7 साल हलशुदा पेपर थे। और मैं अगर कहूंगा हजारों साल से जो पेपर किसी से हल नहीं हो रहे थे, उनके जवाब उसमें थे। अगर समझेंगे तो बरकत मिलेगी। आपके लिए बड़ा इजी कर दिया खुदावन ने, और आपको बोला भी खा लो इसे, और आपको बोला इसके क्या समरात निकलेंगे, इसका रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। लोग नहीं पसंद करेंगे तुम्हें, तकलीफें आएंगी। वो तो मुझ पे भी आई थी, और उसने ये नहीं कहा मुझ पे भी आई थी। एक टाइम पे उसने कहा हरे के साथ ये हो रहा है, लेकिन जब रेवलेशन लेकर निकला है तो उसने कहा पेट कड़वा करेगी तेरा, तुझे दर्द-ए-ज़ाल लगेंगे इससे, लोग तुझे पसंद नहीं करेंगे। क्या करते हैं आज मैसेज बिलीवर्स को? मेरे साथ बड़े तजर्बे ऐसे गुजरे हैं अभी हाल ही में। किसी को तारफ करवा दो तो उसे ऐसे जैसे किसी ने मोटर लगा दी, भाग जाएगा। बच जाओ इससे। क्या ख्याल है? इतना तो कोई तो मैंने नोट किया 2 बातों को। पाक कलाम में लिखा है अगर तू इब्लीस का मुकाबला करेगा तो वो तुझसे, अभी तो मुकाबला शुरू ही नहीं हुआ तो आप दौड़ लगा दिया आपने। क्या ख्याल है? साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। पापा जी की फंडामेंटल बयान कर रहा हूं, जिन्हों सारे यस्सु यस्सु अस्सी है ना, यस्सु मेरे दिल दे अंदर मैं मोमन मस्त है ना, इंजाली गाली है। पर कुछ ऐसे भी हैं, मैं फकत खाक हूं लेकिन नाम मसीहा से है पहचान मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात अपनी औकात बता रहा है कि इस वजह से बदली है मेरी औकात। ये इस वजह से नहीं कि कोई पादरी बन गया, कोई वर्शिपर बन गया, कोई ड्रमर बन गया, कोई तबला नवा, कोई इंस्ट्रूमेंटल बन गया, कोई मीडिया ऑपरेटर बन गया, कोई है ना साउंड ऑपरेटर। इससे नहीं औकात बदली, उसका नाम साथ लगा और मैं उस नाम की अहमियत समझ गया हूं। पापा जी का नाम है, हालेलुया। उसकी वजह से मैं भी मसाशुदा हो गया हूं। खाली बाबर मसीह, नासर मसीह, फलाना मसीह, टमकाना मसीह से हम मसाशुदा नहीं है। और भाई ब्रैनम का एक मैसेज है, आखिरी जमाना के मसाशुदा लोग वो कौन है? किताब पढ़िएगा, अगर मिले मैं कहता हूं जरूर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आखिरी जमाने के खास लोगों में स्पेशलिटी क्या है। कहते हैं ये ना गिरेगा ना टूटेगा ना, है ना अक्केगा ना पक्केगा। पूरी रात बैठाओ, और ये तजर्बे मैंने खुद गुजारे अपनी जिंदगी पर, खुद पूरी रात बैठा, सर फट रहा था दर्द से। किसी ने सवाल पूछ लिया, कहते हैं जवाब लेके उठेंगे। मैं क्या बैठो, मेरे नाल दा भी बंदा बड़ा खुदा उन बरकत दे। मैंने कहा चले जा भाई, मैं तो बैठूंगा, तूने दूर जाना। कहता कोई गल नहीं, फिर हैं नाल ही उठांगे। समझे है ना? तो कुछ होना चाहिए अंदर, फिर आप पा भी लेते हैं उसे, ढूंढोगे तो पाओगे। उन्होंने नहीं पाया, हमने वही कलाम पढ़ा, हमने ढूंढना शुरू किया। आखिरी जमाने में लोग तहकीक को तफ्तीश करेंगे। कौन से जमाने में? आखिरी, द लास्ट एज। हम किस एज में हैं? द लास्ट एज। हम कौन से जमाने में? 7वें जमाने में। कौन सी कलीसिया का हिस्सा है हम? किसी कलीसिया का नहीं। केड़ी कलीसिया में? से भी सवाल आया सी, क्या लुधिकी आई? हाँ एक टाइम पर थे, पर अब नहीं। क्यों? हमने पढ़ लिया था बाइबल से कुछ। क्या पढ़ लिया था? मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकला। समझो कि नहीं समझे? तो हम निकल आए भाई।
हम निकल आए, हालेलुया। और जब हम निकल आए तो हमारा अपना कुछ ना रहा, खुदा के कलाम ही को अपने पहचान बना लिया। आप कौन होते हैं? मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज होता हूं भाई। आप कौन होते हैं? आखिरी जमाना के मसाशुदा लोग होते हैं भाई हम। आप कौन होते हैं? हम एंड टाइम मैसेज के ट्रू बिलीवर्स होते हैं। आमीन। ये कौन सी चीज का नाम है भाई? भाई ये मिशन का तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसी मिशन हमने सुनी नहीं, आप सुनेंगे भी नहीं। और बाय द वे, जब आपको हमारी अंदर बाहर की सारी अंतड़ियों को पता चलेगा, आप रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको लगेगा ये तो मिशन नहीं सिखाती। भाई मिशन तो कोई भी ये नहीं सिखाती, ये एक चीज सिखाती है, पाक कलाम, और ये नबूवत सिखाती है। अगर आप नबूवत के साथ हैं तो आप ऑर्फन नहीं, आप यतीम नहीं है। और खुदावंद ने नबूवत की बेस पर कहा था, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। वही नबूवत जो मेरी है, मैं आऊंगा। किसके जरिए से? रसूलों के जरिए से, 7 कलीसियाई प्यामरों के जरिए से। हालेलुया। रोमियो 10:20-21, जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं उन्होंने मुझे, ये पेशन गोई मैं वो भी पढ़ा दूं। ये रोमियो में आपने पढ़ी है ना, तो रोमियो में जो मुकद्दस पौलुस हैं, गौर से सुनिए, ये रोमियो रेफरेंस दे रहे हैं पुराने अहदनामे का। इसका मतलब क्या? उधर ही लेकर जा रहा है सच्चाई, टाइप ऊपर कहता है, मैं कल्ला नहीं कह रहा, पीछे भी आंजी लिखा है। किसका हवाला दे रहा है? यशायाह 65:1-2, 65 बाब यशायाह का, उसके पहली दूसरी आयत में भी यही लिखा है। तो रोमियो यहां पर क्या कह रहा है? यशायाह भी उनके हक में दलेरी से बोलता है, डर के नहीं बोलता है ना। उसे किसी का प्रॉब्लम नहीं है, वो सच्चाई को बयान करता है। और क्या करता है? जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं उन्होंने मुझे क्या कर लिया? साडी ते हवा नूं भी नहीं सी पता कि एंड टाइम मैसेज भी कोई चीज हुंदी है। हवा को भी नहीं पता था कि यहां से निकलेंगे, शराजा बिखर जाएगा, सैलाब में डूब जाएंगे, पिंडी को मूव करेंगे, वहां पर कोई मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो फिर वो एक आगाज होगा सच्चाई के साथ, सच्चाई का आगाज होगा। तो आपके लिए खुदा ने कुछ रास्ते रखे होते हैं, कुछ रुकावटों में से निकाल करके एक मंजिल रखी होती है आपके लिए। और मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि अगर मेरे साथ कुछ है तो आपके साथ भी हो सकता है। आमीन। अगर आपको अब तक सारी गवाहियों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अपने आप को टटोलें, चेक करें क्यों नहीं पड़ रहा फर्क। कहीं ना कहीं पर, सॉरी टू से, स्पिरिचुअल पैरालिज्म तो नहीं, पैरालाइज तो नहीं आप, रूहानी मफलूज ज्यादा तो नहीं आप। और अगर नहीं है तो एक्टिवेशन किधर है? बेदारी किधर है? जोश किधर है? खुदा हमारे रंग रूप को नहीं देखता, पढ़ाइयों को नहीं देखता, स्टेटस, घराने, खानदान नहीं देखता, जातों पातों को नहीं देखता, केड़ी नस्ल चो आए, किधरों आए, किंज आए। वो कहंदा बीज मेरा है। ओ विच जिहड़ा बैठा ना, ओही उत्ते बहुत भैड़ा जा, ओही तो मेरा है। दुनिया ने उसे ऐसा कर दिया, अब देखना सही होगा। नकम्मों, कमीनों, बेवजूदों को क्या क्या नहीं लिखा बाइबल मुकद्दस में। हम सिर्फ अपने मतलब की लेते हैं और कहते हैं यही सब कुछ। ये सब कुछ नहीं है, असल में जो सब कुछ है वो हमने पढ़ा ही नहीं। हालेलुया। कहता है जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं उन्होंने मुझे पा ली। ये कौन है भाई? मैं अक्सर कहता हूं कि जो एंड टाइम मैसेज है वो बाय चॉइस नहीं है। क्यों जी? वो आपको चांस मिल गया और खुदा ने दिया। वो आगाज से क्या हुआ था? खुदा ढूंढ रहा था ना, आदम ने नहीं ढूंढा। हमने ढूंढा क्या खुदा को? नो, उसने हमें। यार आपके लिए इतना बड़ा काम हो गया है। हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो। मैं चाहता हूं ये आपकी रूह में उतर जाए कलाम, समझे अपने आप को बता। और मैंने ये बात की ना, पापा जैसा होना है। तो पापा, मैं दुनिया के पापा जैसा तो हो ही जाता है बंदा। नाम ही चाहो तो शक्ल मूंह मत्था तो उंजदा ही हुंदा है। किते ना किते थोड़ी बहुत आदत भी हुंदी है कि नहीं? बल्ले ते बल्ला नहीं हुंदा मत्थे ते, थोड़ा बहुत फुली शुली तो जरूर हुंदी है मत्थे ते। तो कहता है जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा। तो भाई ये जिन्होंने नहीं ना ढूंढा, वो हम ही ने नहीं था ढूंढा, पर उसने हमें क्या कर लिया? ढूंढ लिया। उसने हमें पा लिया, उसने हमें ढूंढ लिया का मतलब पा लिया। आमीन। क्यों हमको उसने पा लिया? क्योंकि आगाज ही में उसने ढूंढा और उसने आदम को पा लिया। आमीन। और फिर आगे चल के कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। क्या हम नजात पा चुके हैं? पा चुके हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे आपको। बहुत बड़ी बात है कि आपने नजात को। नजात कौन है? हमारी नजात कौन है? क्या सेमिनरी हमारी नजात है? क्या 4-5 लाइनें, अकीदे, रस्में, रोजरी है ना, मुर्दों की ईद, मेले, तीसरा, चौथा, 20वां, 5वां? मैनू नहीं याद हाले तक मैं अपने पापा की कबर ते गया हुआ किधरे। मेरे नालों बहुता प्यार भी किसी को नहीं होना शायद। क्यों जी? प्यार की एक दूसरी वजह बताता हूं आपको।
प्यार की एक दूसरी हालत ये होती है कि पापा दे नां नू बदनाम नहीं करना, पापा दे नां नू सड़ांद च नहीं पाना। यार बहुत चंगा सी, इन्हें 27 तबक ओदे जनाब जी टट्ठे च पा देते ने। ये बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे मोहब्बत नहीं कहते क्या? क्या ख्याल है खुदा के नजदीक क्या है? कोई कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं और मेरे हुक्मों का ना माने तो वो क्या है? झूठा है। ये है पापा से मोहब्बत। समझे कि नहीं समझे? क्या हम नजात पा चुके हैं? हमारी नजात कौन है? इसका मतलब क्या? हम नजात कैसे पा चुके हैं? अपने किसी जोर से, अपनी किसी तवानाई से, अपनी किसी सेमिनरी वाली अकल से, माजरत से के साथ। ये मैं बातें बार बार क्यों करना? क्योंकि आपको जिंदगी में लोग पूछेंगे, अगर आप आगे चल के कहीं खिदमत में आए, लोग बोलेंगे सेमिनरी कितों की थी। हाँ, लोग पूछते थे या पूछते हैं। क्या ख्याल है? फिर आपको पता होगा कि क्या जवाब देना मैंने इसे। तो ये सेमिनरी से निजात नहीं पाई जाती, लाइनों से निजात नहीं पाई जाती, आयतें रटने से निजात नहीं पाई जाती, लोगों के अकीदें, देगें, फ्रूट, ये वंड दो वो वंड दो, इससे नहीं होती निजात। किसी की भी नहीं होती। जो हम जिंदा हैं हमारी भी नहीं, और जो कब्र में है उनकी भी नहीं। क्या बोला था लाजर को? उसने, अमीर आदमी ने, भेज इसे। उसने कहा ये नहीं जा सकता नीचे। पर वहां तो है ना कुछ लोग, वो सिखा रहे हैं उनको, उनकी सुने। सीधी सीधी सी बात, सुनेंगे तो बच जाएंगे, यहां से कोई नहीं जाएगा। तो मतलब क्या? उसके बाद कोई हिकमत नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं, है ना, सब रुक जाता है। तो क्या हुआ? हमने पा लिया। कैसे? अपनी हिकमत से नहीं। पाक कलाम में लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। फिर पाक कलाम में लिखा, आयत मेरे पास पढ़ी है, मैं लिखवा दूंगा आपको बाद में। पाक कलाम में लिखा है कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है। और ये आयत है यूहन्ना 6:44, ले लेना। टॉपिक आज को पता है ना आपको किस पे हम बात कर रहे हैं? कुछ पाने पे बात कर रहे हैं, कुछ ढूंढने पे बात कर रहे हैं, है ना। कहता है कोई मेरे पास नहीं आता, यूहन्ना 6:44, 6:44 वर्स, ठीक है, चैप्टर 6। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उससे खींच ना ले। खींच ना ले के मतलब पुल कर ले, खींच ले। और अपने बच्चों को आप खतरे से खींच लेते हैं। और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जिसे बाप खींच लेगा, अपने पास तब तक नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या? खुदा उसे ढूंढ लेता और खींच लेता। आमीन। क्या हम खुदा को ढूंढ सकते हैं? तो भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज के अंदर बड़ी सख्त बातें करते हैं, बड़ी सख्त। कहते हैं नस्ल आदम जो है जब पैदा होती है तो वो, उसकी नेचर में लालच है, उसकी नेचर में जिनाकारी है, उसकी नेचर में सूअर की तरह की हालतें हैं जो जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं, 2-2 बीवियां रखते हैं, 2-2 3-3 तरह की जगहों पे उन्हें अपने बहुत सख्त बातें कर रहे हैं। कह रहे हम इस काबिल हैं कि उसे ढूंढें नस्ल आदम होते हुए? नहीं, हम नहीं ढूंढ सकते, पर वो हमें ढूंढ लेगा। हमने उसे नहीं ढूंढा, उसने हमें ढूंढा है। ये नबी के अल्फाज है, और ये कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है। ढूंढोगे तो पाओगे। लोगों को लगा सही ढूंढना है, तुसी इन्ने जोगे है वो, जे तुसी इन्ने जोगे है वो, तो वो क्यों नहीं पहला होए जिन्होंने क्या सी ढूंढोगे तो पाओगे। किनको कहा? जिलों के अंदर बनी इस्राइल को। वो तो पा नहीं सके। मतलब साबित क्या हुआ? अपनी अकल से पा नहीं सकते आप, जब तक आपकी रूहानी अकल नहीं खुदा खोलता। और वो खोलता उन्हीं की है जिनको उसने पाना होता है, जिनको उसने हासिल करना होता है। आमीन। उसने कहा हमारी आदतें सुअरनियों जैसी हैं, गंदगी में जाना, डोगियों जैसी हैं। और क्या ऐसा नहीं है? और आज तो पीक पे है, आज तो कोई महफूज ही नहीं है। किस पे भरोसा करें और किस पे? क्या ऐसी हालत नहीं है आज दुनिया की हो रही? किधर जाएं? ऐसा नहीं है कि सच्चाई या ईमान या एतकाद दुनिया से, खानदानों से खत्म हो गया, या मतलब कहना चाहिए कि कलीसियाओं से खत्म हो गया, और दुनिया से, माशरे से खत्म हो गया, खानदानों से खत्म हो गया, रिश्तेदारों से खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। एतकाद भी है, लेकिन आपने एक चीज गालिब आती हुई देखी होगी, एतकाद जरा कम है लोगों में। ऐसा नहीं है ना? ऐसा जी। और उसने कहा मेरा बाप जब तक ना चाहे खींच ना ले तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। समझ रहे हैं? जब बाप खींचता, बाप क्या है? यीशु का बाप कौन था? खुदा का रूह, खुदा रूह जो था वो यीशु का बाप था। और जब तक यीशु में वो है तो वो क्या है? हमारा बाप यीशु है। आप बोलोगे वो यीशु बाप भी है और दूल्हा भी है, ये किधर दी गल? तुसी 2 रिश्ते बना देते हैं भाई। 2 रिश्ते जिस्मानी बनावा ते फिर ते गल बनदी है। ਤੁਹਾਡੀ शरीयत जिस्मानी रिश्तियां ते खत्म है।
کہ نہیں جڑا باپ ہے وہ دلہا نہیں بن سکتا, جڑا باپ ہے وہ دلہا نہیں بن سکتا, لیکن روحانی حالت میں خدا ہم میں سے ہر کسی کا سب کچھ بن سکتا ہے, باپ بن سکتا ہے, بھائی بن سکتا ہے, اور فائنلی وہ دلہا بھی بن سکتا ہے, کیونکہ اسے اس کے لیے, کیونکہ وہ ایک بات کرتا ہے کہ جب ہم اس کی ابدیت میں, یعنی اکراس دا کرٹن, جس کو ہم پردہ وقت کے پار کہتے ہیں, ٹائم کرٹن جو ہے, ابدیت کے اندر جب ہم جاتے ہیں, جائیں گے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, ایک ہی ہوگا. آمین. اور یہ رشتے ہمیں صرف ایک محبت کو یا رشتوں کو کی پاسداری رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں. آمین. تو میرے عزیزو ان باتوں کو سمجھیں. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی ایک حوالہ ہے. مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح فائنلی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دروازے پر کھڑا ہوا کیا کر رہا ہوں, کوئی میری آواز سنے. تو کیوں کھٹکا رہے ہو بھائی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. شروع میں بھی ڈھونڈ رہا تھا, مکاشفہ کی آخری کتاب میں وہ کیا کر رہا ہے؟ کن کو ڈھونڈ رہا ہے؟ جن کو کہا تھا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, ان کو نہیں ڈھونڈ رہا, کیونکہ ان سے تو ڈھونڈا گیا نہیں. چاہے ان کے پاس عبرانی یونانی کی کتابیں پڑھی ہیں, پھر بھی ڈھونڈا نہیں گیا. ہم سیکھ کے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سیکھ لو ذرا, پھر بھی ڈھونڈا جائے گا تو بتا دینا. نہیں ڈھونڈا جائے گا, کیونکہ یہ معاملہ ہمارا ہے ہی نہیں نا, یہ معاملہ ہی اس کا ہے. وہ ڈھونڈے گا تو ہمیں مل جائے گا اور ہم اسے مل جائیں گے. سمجھ لو ذرا باتوں کو. دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں, کیا رہا ہوں, میرے لیے کھول دروازہ. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے. کیوں جی؟ دروازہ کھولنا ہے. کیا آپ نے دروازہ کھولنا ہے. اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ آپ کے دل کا دروازہ, دماغ کا نہیں. دماغ میں سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, منطق ہے, لاجک ہے, اور لاجک, منطق, ٹیکنالوجی, سائنس سے خدا کو کوئی لینا دینا نہیں. اس کو کس چیز سے لینا دینا ہے؟ جس کو اس نے آغاز میں بنایا کیسا بنایا؟ سائنس والا, چلاک, چتر؟ نہیں. کیسا بنایا؟ معصوم. بس سنو یار, ٹھنڈے وقت میں بات کیا کرو یار, اس حیات کے درخت میں سے کھایا کرو یار, بس. سادہ, سمپلسٹی. خدا سمپلسٹی میں ظاہر ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ کرنا کیا ہے؟ بہت ہی کتاباں پڑھنے کی لوڑ بھی کی ہے. میں ایک طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. کرنا صرف یہ ہے کہ قبول کر لینا, اور قبول کا دوسرا لفظ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح قبول کرنے آپ ہوا کھلا جائے, آجو کار پو, ایسی ہے نا. اور جنوں نہ قبول کرنا ہوئے, بچوں کو کہتے ہیں انہوں کو کار کوئی نہیں, بوا بند اندروں ہی کہنا ہے, ایسی کہتے ہیں. تو اگر ہم خدا کو قبول نہیں کرتے تو اندر سے دروازہ نہیں کھولیں گے, اور لوگوں نے بند کیا ہوا تھا. اسی لیے خدا یسوع مسیح کو کہنا پڑا, دلہا کو کہنا پڑا, باپ کو کہنا پڑا کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر تو دروازہ کھولنا تو میں اندر آؤں گا اور بیٹھوں گا, رہوں گا. آمین. اور میرا باپ بھی آئے گا. کیا خیال ہے؟ تو ثابت یہ ہوا میرے عزیزو, جنہوں نے اسے نہیں ڈھونڈا انہوں نے اسے پا لیا, اور جن کو میں نے تلاش نہیں کیا ان پر میں کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. صحیح کہہ رہا ہوں مطلب. اور یہ تجربہ ہے میرا. آپ تھوڑا سا دعا بس کرنی ہے آپ نے, خدا مجھ پر ظاہر ہو, مجھ پر ظاہر ہو, مجھ پر ظاہر ہو. کیا خیال ہے؟ وہ آپ پر ظاہر ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ میں وین کے خلاف نہیں, وین بائبل میں ہے, رویا ہیں, خوابوں رویا میں خدا ملتا ہے کسی صورت میں, یہ ہیں, اور سچائی ہے, یہ کلام کے مطابق ہے. لیکن میں یہ کہوں گا اس سے آگے بڑھ جائیں. وہ آپ پر کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ اپنے مکاشفہ کے ذریعے ظاہر ہوگا. وہ آپ پر اچھا دس از اٹ, اچھا اس کا یہ مطلب تھا, ہو یہ تو کچھ اور سکھا رہے تھے. اچھا یسایہ 9:6 کے اندر یہ لکھا ہے. اوکے باب القدس, اس کا مطلب یہ ہے. خدا قادر ابدیت کا سلام تھے. اچھا یہ مطلب ہے اس کا. اوکے اچھا یہ ایزبل جو ہے یہ اچھا یہ ڈینومینیشن ہے. اچھا یہ کوارا پادری نہیں ہو سکتا. او یار یہ تو بناتے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ آپ پر کھل گئی باتیں. معافی کے ساتھ یہ میں تھوڑا دہرا دیا پہاڑا. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی جی یہ آپ نے بہت دفعہ کیا, یہ تو بار بار آ رہا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے لیے یہ نیا ہے, تو سب کو لے کر ہم نے چلنا ہے. کیا ہم نے مسیح کو پا لیا؟ سوال ہے, کیا آپ کے پاس جواب آ گیا اس کا؟ یہ سوالیہ ٹاپک تھا نا, کیا ہم نے مسیح کو پا لیا ہے, تو آپ کا کیا جواب ہے؟
पा लिया, बोले पा लिया। आमीन। और यकीन जाने अगर आपने पा लिया मतलब आपने रेवलेशन को प्रिजर्व कर लिया अपने पास, तो वो रेवलेशन जरूर जोश मारेगा आपके पास। और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब वो जोश मारे, जब वो ये सच्चाई, कहीं पर आप बैठे हैं किसी भी मकतबा फिक्र के पास, कहीं पर किसी भी सिचुएशन में, अगर आपको लगे कि ये बात गलत हो रही है और आपके पास सच्चाई है, तो लिखा है जिसके पास सच्चाई है बेटा है उसके पास गवाही है। बेटा ही सच्चाई है ना, तो गवाही दे डालो, रुकना नहीं। ये मत सोचना मैं लड़की हूं वो लड़का है, नहीं नहीं, सच्चाई है आपके पास, कह देना बस भाई एक मिनट रुक जाओ। लेकिन सच्चाई तभी दोगे, सवाल तभी हल कराओगे अगर वो सवाल पूरा आपको आता हुआ, क्योंकि अद्धी सच्चाई जड़ी है ना वो पूरा झूठ हुंदा है, मंजिल ते नहीं ना लैके जांदा। भाई जी आए रोटी बनाई है ते घरों खा के नहीं जानी, ते उत्थे जाके पता चले रोटी ते कोई भी नहीं है, और लेट हो तेरा भला हो जाए, ते भुख लगी है तो बहुत मेरी चीजां समझ ही नहीं आउंदियां, समझ ना। ते सियाणे लोग की कहंदे सन, घरों जाओ खा के ते बाहरों मिलना, घर से खा के जाना है। सही बात कह रहा हूं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब घर से रेवलेशन लेके जाना है, समझे? जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं उन्होंने मुझे पा लिया, और वो कोई और नहीं, मैं और आप हैं। क्या हमने पा लिया? तो जवाब है यस, हमने पा लिया। हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखते हैं, हम नजात को अपनी जिंदगी में रखते हैं। अगर नजात यीशु मसीह है तो वही यीशु खुदा भी है, वही यीशु दूल्हा और बाप भी है, वही यीशु ऑल इन ऑल है, हमारे लिए सब कुछ है। और वो हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है, और हमारे दरमियान है, हमारे बीच में है। आमीन। इसलिए हमने यीशु को पा लिया। यीशु को पाना सच्चाई को पाना है। कौन सी सच्चाई? हमारे जमाने की सच्चाई। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत, इस कलाम का पूरा अजर, पूरा फल, पूरी रूट्स और पूरा फ्रूट आपको दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके साथ। प्रेज गॉड। हालेलुया। तारीफ हो यीशु के नाम।